So good morning, everyone. I am Rajneesh Negi, and I welcome you all to this webinar today, which has been sponsored by PMT India Learning Group. This group is basically a platform where we all product managers, brand managers from the pharma industry, we have come together, and our aim is that we should impart education, knowledge to the people across industries and from different industries. So this platform is basically of the learners, for the learners, and by the learners. Today, I'm very happy to have with us Mr. Parth Thakkar. Mr. Parth Thakkar is a very good friend of mine, and he is a brand manager. He's into brand management, and he's also a sales and marketing and financial enthusiast. And today, Mr. Parth has a lot of nice things to tell us about finance. I'm sure many of us who are in the marketing, we usually don't like finance, but we have someone from the marketing who is who is an enthusiast and who has a keen interest in this. So thank you, audience who have joined us, Rohan, Mohit. Thank you so much, and a lot of many other people who have joined us. Mr. Parth Thakkar, now over to you. Thank you so much. Thank you, Rajneesh Bhai, for this kind introduction. So now I think people have been joining. Rohan Desai, Mohit Hegde, and few others are also signing in. Yes, yes. Yes, great. So should we wait for a minute or two? Sure. I think 6, 7 people are there who have started coming. Yes, yes. Okay, So, okay. Actually, it's a Sunday morning, and people yes, people must be at home, at ease, at peace. yes, They would be like relaxed that okay, every week, Monday to Friday, and sometimes Saturday, full day they have some meetings going on, office work, yes, Teams yes, call, Zoom meetings, WebEx, webinar, everything. So they might be little uh, at ease today morning. yes, yes, So yes, yes. we may wait for a minute more. Sure, Then sure. go. Yes. Yes, I Yes. think we can start. Absolutely. Right. Absolutely. Good morning, everyone. Good morning, friends. As Radneesh Bhai has already introduced me, uh, we are good friends, and I work in the pharma industry, and I do have an interest, a keen interest in financial markets, financial instruments, and so we just were discussing and thought that okay, let's keep an hour's discussion on the same, the kind of experiences that I had, the kind of investments, the kind of financial management, the kind of money management that I have been doing in my personal life. I have been suggesting people here and there in friends and in group, and I've seen people around me also doing the same, and basis that we thought that okay, we will have a small discussion on financial literacy and financial management, basically an insight and not just a formal presentation that we all are uh, very used to in our weekdays, and then we have like presentation after presentation, meeting after meeting, and so we thought to keep it a very smooth and very relaxed and chill uh, discussion on this Facebook Live. So this PMT India group that we are part of since last about 4 years now, more than 4 years actually, and we have now Rajneesh Bhai has initiated this thing that let's have a learn and grow together campaign, a series of learners by the learners for the learners, and so first of all, good job done, Rajneesh Bhai. And I think this would be a great platform for all of us to share our views,
to get something new from all our friends, all our group members. So today, a small disclaimer before we move on and start, that I am not an advisor, not an expert, you can say. I'm just sharing my views, opinions, experiences, which are just absolutely personal in nature, not a SEBI registered analyst, not an advisor or something. I am a brand manager like all of you, like most of you. But yes, I do have my keen interest in financial markets and instruments. So I'll have my opinions and views shared across. So I'll try and cover all the aspects that how you should start your investments once you start earning, and step by presuming that you have, like some of you have no knowledge of financial planning and they are not doing enough of the financial management. So I'll start on that note. So first of all, what is financial literacy? So let's discuss that. What is financial literacy? Every one of us is literate, who can access Facebook Live, who is good at presenting things, who is good at managing brands, using bigger words, using bigger marketing terminologies and everything. But what is financial literacy? That was about literacy, but what is financial literacy? So according to me, there is no formal definition of a financial literate or financial literacy, but I think a comprehensive knowledge of my incomes, whatever I have been earning through any of the sources, my job, or someone has business, someone has, like, say, money giving coming in from different sources like renting income, some commercial property renting income, and everything. So knowing and comprehensive knowledge of, say, income, your expenses can be in fixed expenses, your rented expenses, your day-to-day life expenses, your vacation expenses, and all expenses. Third important aspect, savings. Whatever you have been saving, 1 लाख रुपया आए, 50,000 खर्चा हो गए, 50,000 बचे, उसका क्या किया? So managing your savings, managing your taxation. So every one of us is in the formal economy, so we are paying taxes to the government. So how we are managing our taxes is also part of financial literacy. And the last, or couple of last sorts that we can say, insurances and investments. So knowing your investments and insurances. So having a comprehensive knowledge of income, expenses, savings, investment, taxation, and insurance, all put together in a basket. Whoever has the better knowledge of this can be termed as a financial literate. So that was like the basic, literacy definition. Now we talk about financial management. So what is financial management? We say that, okay, we have been hearing this kind of terminology like wealth management or financial management or money management or investment planning. All these big terminologies we frequently hear from friends, some of the agents, some of the the marketing campaigns of different companies and all. So basically, financial management is managing your total money, having the financial literacy, having the comprehensive knowledge of all things, income, expenses, investments, insurance, taxation, and everything put together, diversifying your risk and ensuring the return of investment. We all talk about return on investment. Say for example, मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, मेरे को 50 रुपए मिले 3 साल में, सो बेसिकली 17% के आसपास का मेरा रिटर्न बना. ठीक है, तो ये हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. हम जब भी मतलब कस्टमर मैनेजमेंट की बात करते हैं, CRM की बात करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वी ऑल टॉक अबाउट this return on investment. But in financial literacy, financial management, the most important aspect is return of investment. क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि यार मैंने पैसा लगाया, डूब गया. पैसा मैंने 100 रुपए लगाए थे, 40 रुपए मिले या 80 रुपए मिले. So return of investment is of also equal importance in the financial management. So basically, I think I have made it clear that, okay, what is financial literacy and what is financial management. So how does a financial literate basically behave? Say for example, suppose हमारे friends में से I can see Mr. Anup Pandey. Suppose he is a financial literate. I can see him on our live. So
say for example, he is a financial literate, so how would he behave? So he will have a knowledge of sources of all the incomes. He will know exactly how his expenses are. And the most important thing, being a Gujarati, uh, some of you must be from Gujarat and knows that Gujaratis are good at keeping books of account that we call in English, and in Gujarati और हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हिसाब अच्छे से रखना चाहिए. So हिसाब is basically what? Knowing that मेरी इनकम इतनी आती है, इतना पैसा मेरे पास आता है, हर महीने मेरे को इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना पैसा मिलता है, उसके सामने मेरा इतना एक्सपेंसेस है. So that is basically your इनकम, एक्सपेंसेस और उसका कंप्लीट हिसाब किताब. तो वो जो हिसाब किताब रखते हैं, दैट इज अ फाइनेंशियल लिटरेट. सो हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम प्लान क्या करते हैं? तो फिक्स्ड जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, कि बच्चा है तो बच्चे का एजुकेशन इज अ फिक्स्ड गोल, बच्चा है बच्चे की शादी इज अ फिक्स्ड गोल, हमारा रिटायरमेंट, आज 32-35 साल के लोग हैं हम, तो वहां पे हमें मालूम है कि 60 साल की एज में या 65 साल की एज में या 55 की एज में वी आर गोइंग टू रिटायर, एंड दैट बिकम्स योर रिटायरमेंट. सो दैट्स अ फिक्स्ड गोल. So you should plan your investments, your things in a way that your fixed objectives are predefined, your fixed objectives are met, and you work on making those objectives a reality, making those financial aspects of the objective a reality. So let's have a discussion on, suppose we will take an example. I don't have a presentation to share, so we will go by examples. We will go by how should an individual start. So suppose a 25-year-old person joins any industry, starts working, starts earning. So what he should have, what he should do as a step 1, as step 2, 3, 4 and subsequently. So first of all, everything kept aside, once a person starts earning, the first and foremost thing that he should have is a health insurance. So what is basically a health insurance? Health insurance, as we all know in our layman terms, that health insurance is a mediclaim, और उसको आप थोड़ा इलाबोरेट वे में एक डेफिनेशन के रूप में देखोगे तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली टेक्स केयर ऑफ ऑल योर एक्सपेंसेस व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज्ड. मान लो आज मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे कुछ होता है आज के कोरोना के टाइम में, सपोज मान लो मेरे को कोरोना हो गया, आई वाज सपोज टू बी हॉस्पिटलाइज, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, आई हैव अ मेडिक्लेम और अ हेल्थ इंश्योरेंस, सो माय एक्सपेंसेस आर कवर्ड in almost all the capacities of expenses if I am a health insurance holder. So first and foremost thing, आपने कमाना चालू किया, पहली चीज हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, डोंट हैव एनीथिंग एल्स. कुछ भी मत रखिए पोर्टफोलियो में, कुछ भी मत करिए, पैसा कहीं पे मत इन्वेस्ट करिए, कुछ मत करिए, पहले हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना इज द कंपलसरी रिक्वायरमेंट. क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, इमरजेंसीज आती है, मेडिकल इमरजेंसीज में पैसा पूरा खर्च हो जाता है, लोगों से लाना पड़ता है, दोस्तों से हेल्प मांगनी पड़ती है, फैमिली की हेल्प लगती है, और पूरा पैसा बिल्कुल वेस्ट हो जाता है. मतलब वंस यू हैव स्पेंट द मनी, आप फिट हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, दैट्स ओके, बट अल्टीमेटली यू हैव लॉस्ट योर फाइनेंशियल थिंग्स in the course of managing your health. तो पहली चीज हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए. कितना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? फिर आज के टाइम में द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, द काइंड ऑफ मेडिकल इन्फ्लेशन दैट वी सी अराउंड, मेरे हिसाब से 10-15 लाख से कम का मेडिक्लेम नहीं होना चाहिए. अभी आपको लगेगा यार 10-15 लाख का इंश्योरेंस, मेरे फैमिली में तो मेरे मम्मी पापा का 3 लाख का इंश्योरेंस है, तो 3 लाख का इंश्योरेंस में भी वो लोग 12-15 हजार का प्रीमियम भरते हैं दोनों लोग, तो व्हाई वुड आई स्पेंड? मेरे लिए तो ये वेस्ट है ना, मेरे को तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो इतना यंग हूँ, मैं पिछले 10 साल में कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ. ये सारे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज इमरजेंसीज नॉक योर डोर विदाउट गिविंग यू अ नोटिस. तो इसके लिए मेडिक्लेम कैसे लेना चाहिए? यू शुड हैव फर्स्ट थिंग मेडिक्लेम. आपने 5 लाख का बेसिक इंश्योरेंस ले लिया, मान लो आपकी उम्र 35 साल है, ठीक है, 35 साल के आप हो, आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ है मान लो 32-33 या 35 साल की, आप 2 लोग हो फैमिली में, हेल्थ इंश्योरेंस आप 5 लाख का लोगे, इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 12 to 15,000 अ ईयर. कम एज में लेने का फायदा ये है, कम प्रीमियम पे मिलेगा. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, आपके हेल्थ के रिस्क बढ़ते जाएंगे, तो आपके जितने हेल्थ के रिस्क बढ़ेंगे उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा.
अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैं तो जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी का 8 लाख का इंश्योरेंस है, 10 लाख का इंश्योरेंस है, फेयर, वेरी गुड. Always use your company's mediclaim if you are given that favor from a company. That is the kind of company that you work for, who cares for its employees. Very good. But मान लो कभी आपकी नौकरी नहीं है, मान लो ऐसा डिफिकल्ट टाइम है, यू हैव चेंज द जॉब, आपने बीच में 1 महीने का गैप रखा था कि यार आई विल गो टू माय विलेज एंड आई वुड स्टे देयर फॉर लाइक 20 days, मैं पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, और वो 20 दिन में आपको कुछ हुआ, then no company will take care of you, because companies are bound by the regulations, rules and everything. So personal mediclaim is the first and foremost priority. तो आप बोलोगे कि 5 लाख का आपने 12-15 हजार बताया, तो 15 लाख का तो फिर 45 हजार हो जाता, तो ऐसा नहीं होता. सो द फर्स्ट इज बेसिक मेडिक्लेम, आपने 5 लाख का ले लिया, तो दूसरी चीज होती है उसमें टॉप अप इंश्योरेंस. तो टॉप अप इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे को अपना मेडिक्लेम करवाना है, 15 लाख का मेडिक्लेम करवाना है. सो देयर आर टू कंपनीज. कंपनी ए जो मेरे को बोलेगी कि पार्थ भाई तुझे कुछ हुआ ना तो मैं 5 लाख तक का खर्चा दूंगा, तू मेरे को 15,000 रुपए दे दे साल का. एंड आई हैव लाइक सेड हिम कि भाई ठीक है, मैं 15,000 तुम्हें दूंगा, 5 लाख का एक्सपेंस तुम दे देना. बट नाउ माई एक्सपेंसेस वुड गो टू लाइक 7 lakhs, 10 lakhs और 12 lakhs और 15 lakhs. तो उसमें क्या होगा? सो देयर इज कंपनी बी ऑल्सो. सो कंपनी बी बेसिकली क्या करती है कि वो बोलती है कि भाई पार्थ, तेरा 5 लाख का जिम्मेदारी तो कंपनी ए ने लिया हुआ है, सो आई विल नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट 5 लाख के ऊपर तुझे कभी भी खर्चे की जरूरत पड़ी तो अगले 10 लाख मेरी जिम्मेदारी. तो उसके लिए तू एक काम कर, तू उसको भले 15,000 दे रहा होगा, मुझे मालूम है कि 5 लाख से ज्यादा तो तू बार बार खर्चा करेगा नहीं, उतना फ्रीक्वेंटली 5 लाख का खर्चा होता नहीं है. उतनी नॉर्मल सिचुएशन में बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या छोटे मोटे कुछ एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से 2 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ये सारी चीजों में 5 लाख का खर्चा नहीं होता है. 40-50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए एट मैक्स, एट मैक्स. तो वो खर्चा तो वो दे देगा. मतलब कंपनी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 5 लाख के बाद वाला खर्चा तो बहुत रेयर होगा ना, तो एक काम कर पाते, मैं तुझे 3,000 रुपए में अगले 10 लाख का इंश्योरेंस देता हूँ. सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने कंपनी ए से बोला कि भाई तुम मेरे को 5 लाख का गारंटी दो 12-13-15 हजार में. कंपनी बी को बोला कि भाई तुम 5 लाख के ऊपर के 10 लाख का गारंटी दो, तो मैं उसका तुम्हें 3,000 रुपए दूंगा. सो बेसिकली आई हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग दिस 18,000 a year रफली, और वो 18,000 में मैंने अपनी 15 लाख की हेल्थ को सिक्योर कर लिया. हर साल इसका प्रीमियम भरते जाओ, वेस्ट हो गया, बहुत बढ़िया, भगवान की कृपा है कि आपको कभी कुछ हॉस्पिटलाइज होना नहीं पड़ा, आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई. तो ये है पहला एस्पेक्ट. Everyone should have mediclaim of at least 5 plus 10 lakhs, that is total of 15 lakhs. अब बोलोगे कि यार मैं सीधा 15 लाख का ले लूं, हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज में 15 लाख का इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो आपका खर्चा प्रीमियम जो है वो ज्यादा, 25-30 हजार का प्रीमियम आ जाए. तो उससे बेहतर है ना कि मेरे पास जो ऑप्टिमम स्पेंडिंग के बाद मैक्सिमम आउटपुट, ऑप्टिमम स्पेंडिंग मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम बेनिफिट, ये वाला ऑप्शन क्यों ना चूज करूं मैं? तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास है कि 5 लाख का बेस इंश्योरेंस, 10 लाख का सुपर टॉप. कौन सी कंपनीज का लेना चाहिए वो भी आपका सवाल हो सकता है. सो आई वुड ऑलवेज गो विथ टॉप 5 कंपनीज. तो टॉप 5 कंपनीज में प्राइवेट प्लेयर्स में आज की डेट में मेडिक्लेम में अच्छी कंपनीज HDFC है, रेलीगेयर जो कि आज अभी केयर के नाम से जानते हैं, सिग्ना मणिपाल करके एक कंपनी है, आदित्य बिरला की कंपनी है. ये सारी 4-5 कंपनीज है ना, इसका मेडिक्लेम ले लो. ये कंपनीज लगभग चलेगी, हमेशा चलेगी, अच्छा उनका प्रोडक्ट होता है. अब तो IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इतना सही प्रोसेस बना दिया है कि कोई दिक्कत नहीं होती है. सबके पास सेम टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सबके पास सेम टाइप के बेनिफिट्स होते हैं. हमें क्या चाहिए? रूम रेंट की कैपिंग नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं 3,000 वाला रूम लूं, 5,000 वाला रूम लूं. जो भी हॉस्पिटल में जाऊंगा उसकी सिंगल रूम है वो मेरे को चाहिए, बस ये मेरी रिक्वायरमेंट है. मुझे स्वीट रूम नहीं चाहिए, मैं डबल में नहीं रहना चाहता, मैं जनरल वार्ड में नहीं रहना चाहता. सो दैट इज माई रिक्वायरमेंट. तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चलूंगा. तो ये सारी जो मैंने कंपनीज बताई, वो कंपनीज में से किसी का भी आप मेडिक्लेम ले लीजिए, 15 लाख का मेडिक्लेम ले लीजिए, एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड. योर स्टेप 1 इज डन व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग. कुछ लोग 32 साल के होंगे, अर्निंग चालू किया 25 साल में, आज तक नहीं है, तो प्लीज गो अहेड एंड टेक दिस. दिस इज द फर्स्ट थिंग that you should have in financial management, because financial management is managing your expenses well. So आपका एक्सपेंस है, हेल्थ का एक्सपेंस हो सकता है, और वो होगा तो मालूम नहीं कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा. तो इसीलिए आपको ये करना है कि एंश्योर कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ले ले
ताकि आपका जो एक्सपेंसेस है इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इन मेडिकल इमरजेंसी, इट इज कवर्ड एब्सोल्युटली. सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ वी कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. पहला मेडिक्लेम ले लिया, चलो मान लो हमारे ग्रुप में से अभिषेक वानी जी है, ठीक है, उन्होंने पहली चीज कर ली है कि भाई मेरा मेडिक्लेम हो गया 15 लाख का, अब व्हाट शुड बी डन. तो दूसरा स्टेप आता है, इंपॉर्टेंट स्टेप, टर्म इंश्योरेंस. सो व्हाट इज टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस इज इफ आई डाई माय फैमिली शुड गेट सम मनी, इज योर टर्म इंश्योरेंस. मरने के टाइम पे फैमिली को पैसा मिले उसको टर्म इंश्योरेंस कहते हैं. मरना सबको है, एक ना एक दिन सबको मरना है, बट वो कौन से टाइम पे कौन मरता है उस पे बहुत डिपेंड करता है. When you die, you never know कि आपके पीछे वाली लोगों की जिंदगी कैसी होगी. So term insurance is basically securing your family's future because that's your responsibility. You are the earning member. हो सकता है कि आपकी वाइफ भी कमा रही हो सकता है कि आपकी उम्र 50 साल है, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 17-18 साल का हो गया है, उसके लिए बड़े खर्चे आने वाले हैं, आपकी वाइफ भी इनफ कमाती है, आपसे ज्यादा कमाती है, फिर भी आप नहीं कमा रहे हो, आप नहीं हो इस दुनिया में, तो उस वक्त जो आपसे कंट्रीब्यूशन मिलता था आपके फैमिली को वो तो नहीं रहा. तो आपका कंट्रीब्यूशन आपकी एब्सेंस में पूरा करने का काम करता है टर्म इंश्योरेंस. तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब तो आप सबको वैसे मालूम ही होगा, बट फिर भी आई हैव टेकन दैट कैवियट एंड दैट फ्रीडम दैट some of you might not be having the term plan, some of you might not be knowing about term plan. तो अभी आती है बात कि कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से मिनिमम इज 1 करोड़ इफ यू आर अर्निंग. आपने कमाना चालू किया 10,000, 20,000, 25,000, जो भी पगार है, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी पगार है, 1 लाख, 1 करोड़ का मिनिमम टर्म प्लान इज व्हाट आई पर्सनली फील दैट यू शुड हैव. अभी कोई लोग बोलेंगे कि यार मेरी इनकम तो 2 लाख रुपए है महीने की, अब 1 करोड़ का टर्म प्लान से क्या होगा. तो बात आपकी सही है. तो टर्म प्लान लेने के लिए और दो एस्पेक्ट्स है. एक, आपके पर्सनल नाम पे जितना लोन है, गाड़ी का लोन, घर का लोन, कोई दुकान प्रॉपर्टी का लोन, ये सब जो लोन है वो लोन का टोटल अमाउंट प्लस योर 1 करोड़, इतना टर्म प्लान होना चाहिए. मान लो मैंने घर लिया है, मेरी 70 लाख की, 70 लाख की मेरी लोन चल रही है, मेरे पास 9 लाख की गाड़ी है, इसकी 6 लाख की लोन है मेरे पास, तो ये 6 लाख प्लस 70 मतलब 76 और 1 करोड़ तो फैमिली के लिए, तो 1.76 का मेरा टर्म प्लान होना चाहिए. ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है. लोग बोलते हैं कि आपकी 10 साल की जो इनकम है ना उतना टर्म प्लान होना चाहिए, उतना ले सकते हैं, उतना आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया. क्योंकि टर्म प्लान इज ऑल्सो अ वेस्टेज ऑफ मनी. वो आप इसीलिए भर रहे हो कि आपको अपने फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए फैमिली को. आज की डेट में आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी लेके निकलते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी कर दिया है कि यार गाड़ी लेते लेते आपने गाड़ी ठोक दी, सामने वाले को ठोक दिया, तो दोनों को पैसा मिलना चाहिए. तो आपके लिए आज की डेट में मेरे को ये सरप्राइजिंग लगता है कि गवर्नमेंट को इंडिविजुअल का भी टर्म प्लान कंपलसरी कर देना चाहिए कि भाई कोई भी बंदा जब कमाना चालू करता है, उसका पीएफ अकाउंट खुलता है ना, तो उसी के दिन उसका 50 लाख का या 25 लाख का टर्म प्लान हो जाना चाहिए. क्योंकि जब वो नहीं रहेगा तो उसके फैमिली को उसकी कमी महसूस होगी, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आल्सो. तो ये चीज करनी चाहिए. आज की डेट में मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने टर्म प्लान लिया था, 40 साल की एज में उनको कुछ हो गया, बच्चे की उम्र 8, 9 साल, 10 साल थी, और उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपया है. 1 करोड़ रुपए में आपकी 10-12 साल की जिंदगी बैठे बैठे निकल सकती है फैमिली के लिए. 2-3 लोग फैमिली में है तो उनकी जिंदगी आराम से निकल जाएगी. और आराम से नहीं भी निकली ना तो अगले 2-3 साल में, 5 साल में दे वुड कम टू द टर्म्स कि यार अभी हम कुछ कर सकते हैं. वो अपने रास्ते ढूंढ पाएंगे कि हाँ अभी हमें महीने के लिए 25,000 की कमाई चाहिए, तो somebody in the family will start those sources of income और उनका गुजरान अच्छे से चल जाएगा. तो my friends, term plan is must to have at the second number of your investment planning. कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए? Go with the leaders, HDFC, ICICI Prudentials, LIC, Tata. My 4 favorites. आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारी कंपनीज है, सस्ता दे रही है, वो सस्ता मत ढूंढिए. थोड़ा पैसा टाटा ज्यादा लेता है कोई दूसरे से, गिव इट. ये पैसा ऐसा है कि जब आप नहीं होंगे ना तब इसकी जरूरत ज्यादा होगी. आप 40 साल में टर्म प्लान लेने जाएंगे, प्रीमियम बढ़ेगा. और टर्म प्लान में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब आप चालू करते हो ना टर्म प्लान, वो प्रीमियम लाइफ टाइम, जब तक की आपकी टर्म है
तब तक के लिए सही रहेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरी उतनी पैसा नहीं है, मेरी उतनी इनकम नहीं है, मेरे को कुछ कम प्रीमियम में लेना हो टर्म प्लान, तो क्या करना चाहिए? तो आई विल गिव यू अ बेस्ट सोल्यूशन टू दिस कि टर्म प्लान लीजिए। आप 75 ईयर्स के जब तक होंगे तब तक, अगर आपका फर्स्ट किड जो है वो आप 30-35 के बीच में भी आपका फर्स्ट किड हुआ है, विच इज दी जनरल एज फॉर दिस जनरेशन, कि हाँ 30-32 साल में पहला बच्चा होता है, तो वो आप जब 60 के होंगे तो वो 30 साल का हो गया होगा, मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो गया होगा आपका बेटा बेटी जो भी है, और फैमिली में भी ऐसा हुआ होगा कि उतने 30 साल में अपने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया होगा। तो कम प्रीमियम वाला चाहिए तो टेक द टर्म टिल 70-75। जब आप ये सिक्योरिटी लेते हो, आज मैं अपना एग्जांपल शेयर करता हूं कि मेरा टर्म प्लान मैंने आज से 5 साल पहले लिया है। बेसिकली 5 साल पहले मैंने अपना जो टर्म प्लान का वैल्यू लिया है वो 75 की एज के लिए लिया है। क्यों? यार 75 तक अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को जरूरत होगी पैसों की, वो टर्म प्लान से उसको मिल जाएगा। अगर 75 तक नहीं हुई तो मैं जो प्रीमियम भर रहा हूँ वो वेस्ट। अगर मैं 75 का हो गया ना, तो जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ ना, उससे ज्यादा तो मैंने बना लिया होगा। आई वुड वर्क माई एस ऑफ, और मैं इतना काम करूंगा कि मैं उतना पैसा तो कमा लूंगा, मेरी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है? सो माय फ्रेंड्स, मेक श्योर दैट यू हैव इनफ टर्म प्लान फॉर योर फैमिलीज, क्योंकि जिन लोगों को टर्म प्लान की जरूरत पड़ती है ना, उनसे जाके पूछोगे आप, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार टर्म प्लान की वैल्यू क्या है। आज की डेट में हमें लगता है, आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे ना, पापा मैं एक काम करना चाहता हूँ, या पापा मैं एक काम करना चाहती हूँ कि मैं 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लेती हूँ अपने लिए, तो पेरेंट्स बाय इमोशंस वो क्या बोलेंगे आपको कि अरे बेटा तेरे को क्या होने वाला है, अरे बेटी तेरे को क्या होने वाला है, तेरे पैसों को हमें क्या करना है, अगर तू नहीं है तो पैसों को क्या करेंगे? इमोशनल ड्रामा और इमोशनल अटैचमेंट्स, वट एवर यू कॉल इट। बट फाइनेंशियल्स एंड इमोशंस, actually financial management is basically managing your emotions 70%, having knowledge 10%, and having your finances is 20%. This is the mix of your financial management. 70% is emotion management. आपने इमोशन को साइड में रख दिया, सब कुछ छोड़, मैं 1 करोड़ का टर्म प्लान लूंगा या मैं 1 करोड़ का टर्म प्लान लूंगी, डन। योर फैमिली इज सिक्योर्ड एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमाते क्यों हो? अपना खर्चा तो सब लोग, अपना खाना तो सबको ही खाता है यार, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सब खाते हैं। अपना खाना खाने के लिए आप नहीं कमा रहे हो, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, अपनी सिक्योरिटी, लाइफ की आसपास की सिक्योरिटी, अपने लोगों की सिक्योरिटी, ये सारी चीजों के लिए करते हो। आप रेंटेड मकान में रहते हो, 25,000 रेंट है आपका, और आपको कुछ हो गया, फैमिली क्या करेगी? कहां से 25,000 भरेगी? इफ द फैमिली इज नॉट अर्निंग, एंड इवन इफ द फैमिली इज अर्निंग, तो उनके मौत शौक ये सारी चीजें कम हो जाएगी। बट अगर आपका टर्म प्लान है, टर्म प्लान का पैसा से सीधा 1 करोड़ का घर ले लो, या 50 लाख का, जो जहां पे भी रहते हो उस हिसाब से घर ले लो, उनके लिए लाइफ सेट की, अभी उनको सिर्फ खाने के लिए ही पैसा चाहिए। सो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड इज टर्म प्लान। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ वी कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा पसंद है। हमारी पुरानी जनरेशन को थोड़ा कम पसंद है। दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, वी आर अग्रेसिव इन नेचर। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है कि पास्ट को देखते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार ये पिछले 10 साल में तो ये हुआ, अगले 10 साल में क्या होगा हमें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम। इकोनॉमी की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जाती है, न्यूज मीडिया ये सारी चीजों के अपने प्री ऑक्यूपाइड जो नोशंस होते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस जो होते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुरानी जनरेशन इसमें नहीं जाती है। वैसा है थर्ड पॉइंट। उसके पहले मैं एक चीज बताता हूं आपको कि पहले 2 पॉइंट के बाद हम सब गवर्नमेंट के लिए टैक्स भरते हैं, गवर्नमेंट को कोई लोग सपोर्ट करते हैं, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, ये सब करते हैं। बट सबसे कम गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स का, गवर्नमेंट की कोई कोई फैसिलिटी का अगर यूज करने वाले लोग हैं तो हमारे टाइप के लोग हैं, हमारी जनरेशन के लोग हैं। बहुत सारे लोगों को राशन मिलता है महीने का, बहुत बढ़िया। बहुत सारे किसानों को उनके लिए एमएसपी के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की सब्सिडीज ये सब मिलता है, उनके लिए बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को टैक्स बेनिफिट्स अलग टाइप से, अलग किस्म के मिलते हैं, बहुत बढ़िया, हम सब खुश है उसमें। एंड वी आर हैप्पी दैट इन अ नेशंस डेवलपमेंट दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट आप और मेरे जैसे लोगों को गवर्नमेंट से क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट से कुछ मिलने वाली चीज है वो हमें मालूम नहीं होती है। तो देयर आर 3 थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स, जो गवर्नमेंट आज की डेट में देती है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हमें मालूम नहीं होता तो हम लेते नहीं है। उसमें पहली चीज,
सबसे पहली चीज आती है कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है कि 2 लाख रुपए का टर्म प्लान सबको देते हैं। जिनका सेविंग्स अकाउंट है उनको जीवन बीमा 2 लाख का मिल जाता है कि अगर आपको कुछ हो गया, जब तक आप 55 के होते हो, आपको कुछ भी होता है तो आपके फैमिली को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों ने ली होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। इसका कॉस्ट क्या आता है? आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में, आप मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है, आप एसबीआई में जाके बोल दो कि मेरा जीवन बीमा जो जीवन बीमा योजना है, जो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, उसमें मेरा एनरोलमेंट कर दो, आपका तुरंत हो जाएगा। नेट बैंकिंग से भी हो सकता है। कॉस्ट इज 300 रुपीज अ ईयर, फिक्स कॉस्ट है। लगभग फिक्स कॉस्ट है 300 से 330 के बीच में आता है। अभी 300 रुपए साल में, मतलब यार आप मान लो कि हम मोबाइल का पहले 299 का मंथली रिचार्ज करवाते थे, आज जियो ने आके हमें 3 महीने में 600 का रिचार्ज, 200 का रिचार्ज करवा दिया है। वहां से ही 200-300 रुपए तो बच गए। यार एक डोमिनोज का पिज्जा साल में एक बार नहीं खाएंगे ना तो भी ये पैसा चला जाएगा। मस्ट टू हैव, you must take this advantage from the government which is provided to you। 2 लाख का जीवन बीमा योजना ले लो, सब कोई ले लो। इफ आपके पास नहीं है then you are doing a big mistake। होना ही चाहिए। 2 लाख से क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, आपको 2 लाख की कदर है नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट 300 रुपए में अगर ये चीज गवर्नमेंट दे रही है ना, हम वैसे भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते तो इतना बेनिफिट तो ले ही सकते हैं। तो दिस यू मस्ट टेक। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। सुरक्षा है तो मतलब एक्सीडेंट की बात आती है कि भाई आपको एक्सीडेंट में कुछ होता है, इफ यू डाई इन अ रोड एक्सीडेंट, कोई भी टाइप के रोड या एयर या कोई ऐसे एक्सीडेंट में आपकी मौत होती है, देन आपको 2 लाख रुपए की गारंटी देती है गवर्नमेंट। और इसका चार्ज क्या लेती है आपके सेविंग्स अकाउंट से? साल के 12 रुपए, 12 रुपीज अ ईयर। कुछ लोग स्मोकर्स होंगे, आधी सिगरेट का दाम हुआ सर आज की डेट में। कुछ लोगों को मतलब ये 12 रुपए मालूम भी नहीं पड़ते होंगे कि आपके अकाउंट से कभी कटे हैं या नहीं कटे। सो जस्ट चेक, इतना सिर्फ देख लो कि 12 रुपए देके हो सकता है कि किसी को जरूरत पड़े तो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की ओर से मिले। बहुत बड़ी बात है यार। गवर्नमेंट इतना हम टैक्स देते हैं, ये सब करते हैं, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो टेक द एडवांटेज ना, उसमें क्या गलत कर रहे हो आप? और गवर्नमेंट भी खुद से थोड़ी ना पैसा देती है, गवर्नमेंट भी इसी चीज को किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ही करवाती है, मोस्टली एलआईसी। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड गवर्नमेंट स्कीम दैट यू मस्ट हैव। 12 रुपए में 2 लाख का आपका एक्सीडेंटल कवर हो गया। अभी एक्सीडेंटल में डेथ हो गई और आपने 300 रुपए उसमें और 12 रुपए इसमें, 342 रुपए साल के जोड़े थे, तो 4 लाख रुपए फैमिली को आएंगे सर, बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो गवर्नमेंट देती है रिटायरमेंट के लिए, हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो आते ही आते हैं। बच्चा है तो बच्चे की पढ़ाई है ही, बच्चा है तो बच्चे की शादी है ही, और आप है तो आप बूढ़े होंगे सर। आप अगर नहीं मरे तो बूढ़े होंगे, कोई भी हो सर मैडम। आप सबको 60 साल की एज में बहुत सारी कंपनियां रिटायर कर देंगी, कुछ लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि तब तक आप जब तक 55-60 के हो जाओ, 55 में ही आपको रिटायरमेंट का बोल दे। तो रिटायरमेंट इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ। तो उस वक्त के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सही चीज सोची है कि भाई आप 60 के होते हो तब तक के लिए आप हर महीने पैसा भरते रहो। तो आज की डेट में एक 30 साल का अगर इंसान है, एट द एज ऑफ 30 इफ यू स्टार्ट दिस, तो वो स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये योजना चलती है, पेंशन के लिए बहुत बड़ी स्कीम है। महीने का आपने डिसाइड किया कि भाई चलो मैं 500 रुपए का उन्होंने फिक्स किया हुआ है, तो 500 रुपए अगर आप भरते हो, 500 से 600 के बीच में आएगा, 520, 529 ऐसा अमाउंट आता है। आपकी बैंक अकाउंट से ही होता है, पीएसयू बैंक में ऑनलाइन सीधा कर सकते हो, एसबीआई, बीओबी या कोई भी बैंक में। वंस यू स्टार्ट पेइंग 500 रुपीज अ मंथ, 30 साल, मतलब आप 30 साल के हो तो अगले 30 साल, मतलब आप जब तक 60 के होते हो तब तक ये भरते हो ना, तो गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है कि भाई 60 के बाद अब जब तक जियोगे मैं 5,000 रुपए महीना आपको पेंशन दूंगा। सो आपको 5,000 रुपीज मंथ एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन यू टर्न 60 माइट नॉट लुक दैट ल्यूक्रेटिव, बट यार 500 500 करके मैंने
अगर 3 साल भी मैं 60 के बाद जिया तो मेरा पैसा तो वापिस आ जाएगा। और बीच में अगर कुछ हो गया, 30 से 60 के बीच में ही कुछ हो गया, तो जो भरा पैसा है वो वापिस दे देंगे गवर्नमेंट। और अगर 60 के बाद आपने 10-20 साल जी लिए तो यार 5-5 हजार रुपए आएंगे, जो भी आया। आज की डेट में अगर आपको महीने का 500-700 या 1000 रुपए भी मिलते हैं आज की डेट में, तो गलत क्या है? आपको 1000 रुपए कोई हर महीने देना चालू करेगा कि यार आपके पिताजी ने या आपके माताजी ने ये किया था आपके लिए, और इसकी वजह से आपको महीने का 1000 रुपए मिलेगा। यू विल से कि अरे 1000 रुपए का मेरे को कोई काम नहीं है। हो सकता है आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो, फिर भी आप सोचोगे कि ठीक है चल 1000 रुपए आते हैं ना, हो सकता है काम वाली बाई के पैसे निकल जाए मेरे घर से। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये तीसरी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका हमें फायदा लेना चाहिए, अटल पेंशन योजना। 5000 गारंटेड मंथली पेंशन आफ्टर 60 एज। आप जितने भी साल के हो आप चालू कर सकते हो। एज के हिसाब से वो 500 वाला 600 या 700 या 800 हो जाएगा। जितने साल कम बचे हैं 60 साल में, उसके हिसाब से वो लोग पैसा थोड़ा ज्यादा चार्ज करेंगे। तो ये 3 गवर्नमेंट की स्कीमों को आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो मैं हमारी जनरेशन की बात कर रहा था, उसके पहले और 2 चीजों को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, 2 चीजों को इंक्लूड करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग, आप सब लोग 10, 20, 25, 50 हजार से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। जितने लोग आज की ये वेबिनार में, ये फेसबुक लाइव में पार्ट है, वो सब लोगों का ऐसा है कि यार आप बहुत अच्छा कमाते हो। मतलब फ्रॉम एवरेज अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू यू आर अर्निंग गुड, यू मस्ट फील दैट हैप्पीनेस। और उसके साथ साथ 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से 2 चीज है। पहली, आपके पास 50,000 के अराउंड का कैपिटल, आपकी इनकम जो भी हो, मतलब आपकी इनकम अगर 20,000 है तो आपके लिए 25,000 भी बड़ी अमाउंट हो गई। ऑलमोस्ट हाफ मंथ की आपकी टेक होम सैलरी, मतलब आपकी 1 लाख रुपए पगार है तो 50,000, आपकी 2 लाख सैलरी है तो 1 लाख रुपए। ऐसा एक अमाउंट आपके कोई एक अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए। उसमें नहीं देखना है रिटर्न कितना है। एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा दो, कोटक का, आईडीएफसी का, जिसमें 6 से 7% होता है। ठीक है, तो जो 6 से 7% रिटर्न देने वाले भी बैंक से, उसमें भी या 4% या 3% भी देता है, रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं। मान लो कि मेरी पगार 1 लाख रुपए है आज, तो मेरे एक अकाउंट में 50,000 रुपए हमेशा होने चाहिए। क्यों? कभी भी मेरे को जरूरत पड़ी कुछ पैसों की, मेरे फैमिली में किसी को जरूरत पड़ी, कुछ मेरे को कुछ ऐसा चीज आ गया कि जहां पे मेरे को पैसा की जरूरत है, दैट शुड बी माय इमीडिएट रिसोर्स। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी को फोन करके मांगना पड़े। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजिंग योर इनकम, मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस, मैनेजिंग योर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स, एवरी सिंगल थिंग। तो इन अ नटशेल, आपको आधे महीने की सैलरी एक अकाउंट में रख देनी। ये हुआ आपका द मोस्ट इमरजेंसी फंड, पर्सनल मोस्ट इमरजेंसी फंड। उसको कभी टच मत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को गाड़ी लेनी है, डाउन पेमेंट देना है तो वहां से पैसा दूं। नहीं सर, वो उसके लिए नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए है। इमरजेंसी क्या हो सकती है कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं और मैंने किसी साइकिल वाले को ठोक दिया। अभी साइकिल वाले को कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ ज्यादा हुआ है, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए मुझे 20,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे। अदरवाइज मेरे ऊपर पुलिस केस हो जाएगा, कल नौकरी चली जाएगी, ये सब चीजें हो सकती है। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए मुझे 20,000 चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो है नहीं, मैं सेविंग्स में तो पैसा ही नहीं रखता हूँ। मेरे तो हर महीने के इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ पैसा बचता ही नहीं है। मेरे तो खर्चे ही उस हिसाब से है, रेंट है, ईएमआई है, वो सब सब मिला जुला के मेरे पास पैसे नहीं बचते। तो वैसे टाइम पे, ऐसी इमरजेंसी में, ये जो 50,000 लाख रुपए का जो आपका पैसा है ना, वो आपको बहुत, ये आपके लिए जादू बनेगा। आपको उस वक्त समझ में आएगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी। और बहुत सारे लोग हैं कि जो अच्छे से मैनेज करते हैं ना, उनको ऐसी जरूरत कभी नहीं आती है। बट फिर भी इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप नोट कर लो कि ये चीज मेरे को करनी है। दिस शुड बी द टू डू लिस्ट ऑफ 2020 या 2021। मेरे को अगले दिवाली तक ये करना है कि मेरे एक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए करके भी मैं ये जमा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो ये होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। और आज के टाइम में जो लोग इमरजेंसी, नॉर्मल इमरजेंसी फंड की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि 12 से 18 महीने का जो आपका एक्सपेंसेस है, उसको भी आपको हाथ में लेके चलना चाहिए। सो दैट इज वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ यू, कि आपको लगता है कि यार मेरी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली बैकअप उतना नहीं है, और मैं करना चाहता हूँ, तो इट इज गुड टू हैव 12 मंथ्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खाने पीने का खर्चा, जो आपके घर पे काम वाली, या आपके घर पे ड्राइवर है, या आपके घर पे कोई कुक आती है, या शेफ आता है कोई, ऐसा जो भी लोग है,
उनका खर्चा पूरा मिला के, आपका खाने पीने का खर्चा मिला के जो भी खर्चा होता है सब 12 महीने का खर्चा, मान लो मेरा खर्चा ऐसे 40,000 है प्लस मेरा 20,000 रुपए रेंट है, तो 60,000 महीना, मतलब 12 महीने का 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट में होने चाहिए, मेरे एक ऐसे एफडी में या आरडी जैसे एक इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। तो एफडी एंड आरडी क्यों करना चाहिए, कहां करना चाहिए, तो इमरजेंसी फंड के लिए एफडी एंड आरडी इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और वो आपको करना चाहिए। तो ये हो गई एक एक्स्ट्रा इनिंग्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद एक्स्ट्रा इनिंग्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। किसी ने पूछा है तो मैं बता देता हूं आपको कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना एंड अटल पेंशन योजना, ये 3 हो गए। आपका इमरजेंसी फंड एक अकाउंट अलग से होना चाहिए बिल्कुल, विच इज नॉट इन रूटीन यूज। ऐसे आपके 50,000 लाख रुपए जो भी आपके आधे महीने की सैलरी, बेसिकली आपके हाफ ऑफ योर मंथली टेक होम सैलरी, वो आपके अलग अकाउंट में होना चाहिए। और 6, 12 या 15 महीने का एक्सपेंस अगर आप जमा कर सके एफडी आरडी से, बहुत बेहतर होगा। इसके बाद हम आते हैं जो इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो 2 जनरेशन के बीच का गैप है, उसको उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, विच इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड्स। सही है। सो मेनी ऑफ यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस कि यार म्यूचुअल फंड जैसा कुछ नहीं। आई एग्री। बहुत सारे लोगों में ये एक डिस्कशन का पॉइंट होता होगा या एक बिलीफ होती होगी कि म्यूचुअल फंड बेकार है, कुछ नहीं करना चाहिए, इसका कुछ नहीं। मैं आपके साथ अग्री करता हूँ। तो मैं दोनों के साथ अग्री करता हूँ कि ये बहुत बढ़िया भी है, बहुत खराब भी है। क्यों खराब है, क्यों अच्छा है, वी विल डिस्कस नाउ। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? तो सिंपल भाषा में इसको अगर समझते हैं तो म्यूचुअल फंड इज, जिसको कुछ समझ है, जिसको कुछ ज्यादा आता है मुझसे, उसको मैं भरोसा करता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो रजनीश भाई ने, रोहन भाई ने, कश्यप ने, अभिषेक वानी ने, ये 4 लोगों ने बोला कि पार्थ तुझे कुछ चीजें मालूम है फाइनेंशियल मार्केट में, तो हम तुझे 20-20 हजार रुपए देते हैं। 4 लोगों ने मिलकर मुझे 80,000 रुपए दिए और बोले कि भाई तुम 80,000 मैनेज करो अपने हिसाब से, जो प्रॉफिट होगा हम डिवाइड कर लेंगे, 4 लोग, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, हम 5-5 हजार डिवाइड कर लेंगे। सो अ फंड, a fund managed for mutually agreed people, मतलब जो लोग म्यूचुअली अग्री करे हैं कि हाँ भाई मुझे इसमें डालना है। और एक म्यूचुअल फंड उसी को बोलते हैं कि जो म्यूचुअली अग्रीड लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, 1,000, 2,000, 5,000, लाख, 2 लाख लोग होंगे जिन्होंने बोला है कि हाँ यार ये फंड है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसको मैं पैसा देता हूं और वो स्टॉक मार्केट में और अलाइड इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट में डालते हैं और वहां से रिटर्न निकालते हैं, उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। सो फंड इज बेसिकली म्यूचुअली डिसाइडेड और म्यूचुअली अग्रीड अपॉन कंपनी जो आपके पैसों को मैनेज करती है। अभी म्यूचुअल फंड पैसा लगाता कहाँ है, वो कहां से पैसा कमाएगा? सो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो हम रूटीन भाषा में यूज करते हैं। शेयर बाजार में लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारे अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स, फिक्स्ड एसेट्स इंस्ट्रूमेंट, ये सब जगह पे वो पैसा लगाते हैं, जो भी पैसा रिटर्न मिला उसको डिवाइड कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसको बोलते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन हुआ इसका। अभी म्यूचुअल फंड्स जो है उनके ऑब्जेक्टिव प्री डिसाइडेड होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं और वो टाइप के हिसाब से जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअली अग्री करते हैं कि भाई मुझे इस फंड में पैसा डालना है, मुझे इसमें डालना है, मुझे इसमें डालना है, ए बी सी डी, बहुत सारे ऑप्शन है। देयर आर 19 डिफरेंट कंपनीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज और सब कुछ है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट। अभी लोग बोलते हैं कि व्हाट इज एसआईपी देन, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जो सबसे ज्यादा सुनने वाला वर्ड है वो म्यूचुअल फंड से बेहतर एसआईपी है। सो एसआईपी इज योर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट और रूट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि भाई मैं एक साथ पैसा नहीं डालता हूं और अपने हिसाब से अलग अलग टाइम फ्रेम में डालता हूं, कि हर महीने डालता हूं, हर हफ्ते डालता हूं, हर 3 महीने में डालता हूं। सो दैट इज सिपिंग। मेरे को पूरा कप कॉफी पीना है, बट कॉफी में एक साथ नहीं पी रहा हूं, आई एम सिपिंग इट। सो दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में एक एक घूंट कर करके अपने गले से नीचे उतार रहा हूं। सो मैं अपने म्यूचुअल फंड में, मैंने जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से म्यूचुअल फंड को चुना था, उसमें मैं मेरे टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके जो डाल रहा हूं, दैट इज सिपिंग, एसआईपी जो हम बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी। नाउ टाइप्स क्या होते हैं उसके?
सो म्यूचुअल फंड्स के जो बेसिक टाइप्स होते हैं ना, वो 5 है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है अलग अलग, बट सबके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए 5 टाइप बहुत इनफ है। पहली है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप, चौथा है मल्टी कैप, और पांचवा है बैलेंस्ड फंड। ये बेसिकली जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की मैं बात कर रहा हूं कि शेयर मार्केट में जिनका पैसा जाता है, ऐसे 5 टाइप हो गए। लार्ज कैप मतलब पहले 100 कंपनी, टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट आर लार्ज कैप्स। अगले 150 कंपनीज मेरे हो गए मिड कैप, उसके बाद वाले सारे स्मॉल कैप्स। तो मतलब बड़ी कंपनी लार्ज कैप मतलब क्या, रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईटीसी, एचयूएल, जो आप बड़े बड़े नाम सुनते हो वो। दूसरा होता है मिड कैप, छोटी छोटी कंपनीज है जो जिनका टर्नओवर कम है, टाटा स्टील हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज मिलकर बनाती है वो मिड कैप है। और तीसरा होता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप मतलब बहुत छोटी कंपनी है, जैसे परसों ही हैप्पीएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग हुई, तो हैप्पीएस्ट माइंड इज अ कंपनी जिसका मार्केट कैप इज व्हाट, लेस देन 2000 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है, तो वो कंपनी को आप स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। चौथा होता है मल्टी कैप। मल्टी कैप मतलब भाई 25% बड़े में डालो, 25% बीच वाले में डालो, 25% छोटे में डालो, मतलब लार्ज मिड और स्मॉल कैप में 25-25% डालो, बाकी 25% तुम्हें जो करना है करो, ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, वो टाइप को मल्टी कैप बोलते हैं। और फिफ्थ वन इज बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड मतलब ऐसा फंड कि जो आप 100 रुपए उनको देते हो। मैं सपोज बैलेंस फंड हूं और भानु भाई ने मुझे 100 रुपए दिए, तो मैं वो 100 रुपए के लिए क्या बोलूंगा कि भाई भानु भाई, मैं हमारा ऑब्जेक्टिव सेट है कि मैं आपके 65 रुपए है ना उसको इक्विटी में लगाऊंगा, मतलब शेयर बाजार में मैं आपके 65 रुपए लगाऊंगा और 35 रुपए जो है ना वो एफडी में लगाऊंगा। तो आप देख लो, ये मेरा बैलेंस करने का स्टाइल है, क्योंकि मार्केट की डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं चलती। मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलता फिरता रहेगा, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं 35 रुपए तो फिक्स में रखूंगा और बाकी 65 है उसको इक्विटी में लगाऊंगा। और भानु भाई बोले बहुत बढ़िया भाई, मेरे को तो बैलेंस फंड में ही डालना है पैसा। दैट इज द फिफ्थ टाइप की जो बैलेंस करता है इक्विटी और डेट में। तो ये हो गए इक्विटी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वंस अगेन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। जैसा नाम है वैसा ही उसका मीनिंग है। लार्ज मतलब लार्ज, मिड मतलब मिड साइज, स्मॉल मतलब स्मॉल, मल्टी मतलब सब कुछ, और बाद में बैलेंस, तो दोनों चीजों का मतलब एक एक तरह से उसको तोल माप के करते हैं। अभी इसके अलावा एक टाइप होता है डेट, DEBT, डेट। डेट फंड्स का मतलब है कि यार मान लो कि एसबीआई है, उसको पैसा चाहिए, तो कहां से मिलेगा एसबीआई को पैसा? तो आरबीआई दे सकती है। अभी आरबीआई से वो बहुत पैसा ले लिया, तो और कौन दे सकता है? तो बोले और बड़ी इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, चलो एलआईसी से पैसा लेते हैं, एलआईसी से ले सकते हैं। और भी पैसा जुटाना है तो क्या कर सकते हैं? आपके मेरे जैसे लोगों को बोल सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर को बोल सकते हैं कि यार 5 करोड़ दो, 10 करोड़ दो। आप और मेरे को बोल सकते हैं यार 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, और उसके ऊपर वो लोग फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सो दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम अस, जिनको हम बोलते हैं, ये फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में बॉन्ड्स। बॉन्ड का मतलब है कंपनी टेकिंग लोन्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल, उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं आप डेट म्यूचुअल फंड। तो डेट म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि मैं सपोज डेट म्यूचुअल फंड हूं, तो मैं बोलूंगा कि सर आप मुझे 5 लोग पैसे दीजिए, और ये जो 5 लोग आपने मेरे को पैसे दिए, मैं इसको ऐसी जो कंपनीज की लोन है उसमें पैसा लगाऊंगा, एंड यू ऑल अग्री टू मी कि भाई ठीक है, तुम अपने हिसाब से करते रहो। इसमें क्या होता है कि लोन होता है तो उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। तो ये जो कंपनी, मैं एज अ डेट फंड, मैं अपने पैसों को जो जो लोन्स में लगा रहा हूँ उसमें मालूम है इसमें से 8% मिलेगा, दूसरे में से 6% मिलेगा, एक 9% वाला भी है। अपने रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं ये फिक्स इंटरेस्ट कमाऊंगा और जो पैसा आया उसको आप में बांटूंगा। दिस इज डेट म्यूचुअल फंड। तो ये हो गए बेसिकली म्यूचुअल फंड के टाइप्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो ये आता है ना कि यार इन्वेस्ट कहाँ करना है। ये तो सब कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मुझे तो इंटरेस्ट है कि मुझे क्या करना है। तो आपको क्या करना है कि अच्छा म्यूचुअल फंड आप चूज करना है। अभी सबके लिए इजी नहीं होता है, और एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी टॉप 10 में या टॉप 2 में या टॉप 3 में या टॉप 5 में आज है, वो हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि अपने अपने पोर्टफोलियो, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो लोग कुछ चीजों को बेचेंगे, कुछ को खरीदेंगे। तो ये अपने हिसाब से जो मैनेज करने जाएंगे ना, तो कभी कभार कोई उसको आउट परफॉर्म करेगा, कोई उसको अंडर परफॉर्म करेगा। तो म्यूचुअल फंड उन्हीं लोगों के लिए है
जिनका होराइजन मिनिमम 5-7 ईयर्स है। अगर आपको लगता है कि मैं 5-7 साल के लिए पैसा डाल सकता हूँ, मैंने अपने जो आपने पहले 2 पॉइंट बताए, हेल्थ टर्म वाला कर लिया, गवर्नमेंट स्कीम वाला कर लिया, इमरजेंसी फंड का भी मैंने थोड़ा बहुत इंतजाम कर लिया, और अभी भी मेरे पास पैसा बचता है खर्चा करने के बाद, तो सर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे नोइंग कि आप 5-7 साल के लिए आप कुछ नहीं करोगे, यू विल नॉट टच दिस मनी फॉर 5-7 ईयर्स, तभी जाके म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो मैं जो पहले शुरुआत में आपको बोला था म्यूचुअल फंड के डिस्कशन के शुरुआत में, कि आपके पेरेंट्स या कोई ओल्ड एज वाले लोग बोलेंगे आपको कि यार इसमें पैसा नहीं बनता है, क्योंकि 2 साल 3 साल जब ड्रॉप आता है ना, तो इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते, पैसा निकालोगे तो नुकसान होगा। 5-7 साल का टाइम दोगे, उसको आप भूल जाओगे कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से चूज करने के बाद तो आपको अच्छे से पैसा मिलेगा। तो ये हुआ बैकग्राउंड ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अभी म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें? सो मैं है ना थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का इंसान हूं। कंजर्वेटिव मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एफडी में पैसा लगाता हूँ, मेरा इक्विटी एक्सपोजर ही ज्यादा है, बट मैं कंजर्वेटिव इस हिसाब से हूं कि मैं हर एक को भरोसा नहीं करता, किसी एक पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं करता। तो क्या करना चाहिए? आइडियली फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास महीने के 5,000 रुपए बचे, आपको आपने डिसाइड किया कि मुझे म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए डालने हैं, मतलब एसआईपी 5,000 की करनी है। तो क्या करना चाहिए? व्हाट आई वुड एडवाइज इज 1,000 रुपए लार्ज कैप में डालो हर महीने, 1,000 रुपए आप मिड कैप में डालो, 1,000 रुपए स्मॉल कैप में डालो, 1,000 रुपए आप मल्टी कैप में डालो, 1,000 रुपए बैलेंस फंड में डालो। 5 अलग अलग टाइप के इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, सब में 1,000 रुपए हर महीना डालो, और मेक श्योर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मेक श्योर कि ये पांचों कंपनी भी अलग अलग हो। मतलब लार्ज कैप अच्छा करेगा तो मुझे फायदा मिलेगा, मिड कैप अच्छा करेगा तो मिलेगा, स्मॉल कैप करेगा तो मिलेगा, मल्टी कैप में तो तीनों में से किसी ने भी किया तो फायदा मिलेगा, बैलेंस में तो डेट का तो मिलेगा ही मिलेगा फायदा। सो आई एम डाइवर्सिफाइंग माई रिस्क इन अ वे जहां पे मेरे बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स निकल के आए। तो 5 स्कीम में पैसा लगाओ, 5 अलग अलग टाइप के स्कीम में पैसा लगाओ, और उसमें पांचों अलग अलग कंपनी रखो। फॉर एग्जाम्पल लार्ज कैप के लिए मैंने एसबीआई को चूज किया, एसबीआई ब्लू चिप फंड को मैंने चूज किया। मिड कैप के लिए मैंने डीएसपी का जो मिड कैप है उसको मैंने पसंद किया। स्मॉल कैप के लिए मुझे एचडीएफसी अच्छा लगा तो मैंने एचडीएफसी का स्मॉल कैप किया है। मल्टी कैप के लिए मुझे एक्सिस बैंक का अच्छा लगा तो मैंने एक्सिस म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप लिया है। और बैलेंस फंड के लिए मुझे आदित्य बिरला का लगा तो मैंने ये किया। सो मैंने पांचों अलग अलग कंपनी, पांचों अलग अलग टाइप के फंड्स। मतलब क्या हुआ? एक फंड कैटेगरी परफॉर्म नहीं करती है तो चलेगा, एक कंपनी को डूब भी गई तो चलेगा। सो बेसिकली आई एम मैनेजिंग माय रिस्क इन अ वे जहां से मेरे को ऑप्टिमम रिटर्न्स मिले, मेरा ऑप्टिमम रिस्क रहे, और आउटपुट ऑलमोस्ट मैक्सिमम के करीब पहुंच जाऊं। सब पैसा मैंने मिड कैप में डाल दिया, अगर पूरा का पूरा 5,000, और मिड कैप शेयर्स में बहुत बड़ा क्रैश आ गया जो पिछले 3 साल में आया था, तो क्या होगा मेरे पैसों का? हो सकता है कि मैंने सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दिया तो लार्ज कैप एकदम दे आर फ्लाइंग हाई और मेरे पैसा बहुत अच्छा रिटर्न दे देता, बट इट नेवर हैपेंस। मार्केट जो रिस्क है उसको आपको मिटिगेट करना है, आप कंप्लीटली उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। मार्केट का जो आपका रिस्क है उसको आपको इस हिसाब से डाइवर्सिफाई करना है ताकि आपके जो 5,000 रुपए हर महीने का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से मैनेज हो, अच्छे से आपको रिटर्न मिले ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 7, 10 ईयर्स। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू शुड डू योर एसआईपी, यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। और आप अगर अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से किसी से बात करते हो तो उनको बोलना चाहिए कि सर या अंकल या पापा, मैं है ना ये 5 साल 7 साल के लिए पैसा भूल रही हूँ। पापा मैं 5 साल के लिए ये पैसा कभी कमाई ही नहीं थी ना, ऐसा मैं सोच रही हूँ, मैं कमाया नहीं था ऐसा सोच रहा हूँ। देन यू विल हैव द ऑप्टिमम रिटर्न्स आउट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और 5 साल 7 साल के होराइजन में इस हिसाब से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का आपने रूट पसंद किया तो म्यूचुअल फंड्स सही है। अदरवाइज 2 साल के बाद ऐसा कोविड जैसा सिचुएशन कुछ आया और अचानक से मार्केट 30% 40% करेक्ट हो गया और आप पैनिक कर गए कि यार मेरे पैसे तो अभी 25% कम है, इससे अच्छा तो मैं एफडी में डाल देता और मैं पैसा निकाल लेता हूँ। सॉरी सर, दिस ऑप्शन इज नॉट फॉर यू। सो आई एडवाइज पीपल अराउंड मी, फ्रेंड्स ऑफ माइंड, कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए और ये माइंडसेट के साथ डालिए कि 5 साल कुछ नहीं,
यार सरकार आती है तो भी 5 साल रहने देते हो, तो अपने पैसे तो 5 साल रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट था जो म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी हम अगला चीज के ऊपर जाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगली चीज क्या आती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट। हमें ये चीज कर, देखो ये इन्वेस्टमेंट जर्नी में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में पहली चीज पहली करनी है, दूसरी दूसरे नंबर पे करनी है, तीसरी तीसरे नंबर पे करनी है। नाउ इवन इफ आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ 3 थिंग्स यू आर लेफ्ट विथ रेसिड्यूअल मनी, आपके पास कुछ और पैसा बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो होता है। अब 1 लाख, अब जब 50,000 कमाते हो ना तो आपके पास 5,000 रुपए ही बचते हैं। अब जब 1 लाख कमाते हो ना तो आपके पास 20,000 रुपए बचना चालू होते हैं, क्योंकि द वे योर इनकम्स इंक्रीज द एक्सपेंसेस डोंट इंक्रीज इन द सेम मैनर। आपकी सैलरी आज 1 लाख रुपए है, रेंट आपका 22-25 हजार है, और आपकी सैलरी बढ़ के आप मान लो कि 2 साल के बाद 1,50,000 हो गई, तो होगा क्या कि आपका रेंट 5,000 ही बढ़ा होगा, पर आपकी सैलरी 50,000 बढ़ी। आपके खाने पीने के खर्चे में इन्फ्लेशन का 5% ही जुड़ा होगा। सारा खर्चा उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जिस हिसाब से आपकी इनकम आफ्टर सर्टेन एज बढ़ती है, ठीक है। किसी का प्रमोशन हो जाता है, आज की डेट में कोई प्रोडक्ट मैनेजर है वो जीपीएम हो जाता है, जीपीएम कोई मार्केटिंग मैनेजर बन जाता है, एक्सपोनेंशियल सैलरी इंक्रीज आता है, एक्सपेंसेस उतने एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ते हैं। तो अगर ये 3 चीजों के बाद आपके पास पैसे बचते हैं तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट? तो आज की डेट में आई एम से 30, आई एक्सपेक्ट कि भाई अगले 2 साल 3 साल में आई विल हैव अ किड, और उसको 15 साल का जब वो होगा या वो होगी 15 साल की, उस वक्त मेरे को उसके एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। जब वो 25 साल की होगी या होगा, उस वक्त मेरे को उसकी शादी के लिए पैसे चाहिए। रफली 25 साल के अराउंड, हो सकता है कि वो 28 में शादी करे या 23 में करे, बट मैं ये सा ऑब्जेक्टिव लेके अगर चलता हूँ, देन देयर आर फ्यू ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स व्हिच आर नॉट यूलिप यूनिट लिंक्ड। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न देती है वो नहीं, गारंटेड रिटर्न्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोग बोलेंगे कि यार इसमें तो 6% रिटर्न मिलता है। भाई आप 6% के ऊपर मत जाओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एवरीथिंग, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो एवरीथिंग। आपने जो करना था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वो आप कर चुके हो। तो ऑब्जेक्टिव बेस में आप क्या कर सकते हो कि सपोज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक एएसआईपी करके प्लान है कि 7 साल के लिए मान लो आपने 50-50 हजार रुपए आज से 7 साल के लिए डाला, 15वें साल में आपको ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज मिल गए। मतलब आपके पैसे का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आप एक्सेल में फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, वो ऑलमोस्ट 6% आएगा। तो आपको लगेगा यार म्यूचुअल फंड में तो 10-12% आता है। जो हिसाब से मैंने 5 में डिवाइड करने का बोला, अगर 5-7 साल आप इन्वेस्ट करोगे ना तो इसमें मोस्टली 10-12% का रिटर्न आपको आराम से बैठेगा, विच इज अ वेरी गुड रिटर्न। आज की डेट में इक्विटी में 20% रिटर्न मत मान के चलिए सर, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, बट 20% रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ रिस्की थिंग। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइडियल और कंफर्टेबल लेवल इज लाइक से 10-12% इज एन आइडियल लेवल। तो आप बोलोगे यार 5-7 साल में 10-12% का रिटर्न आप बोल रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो फिर ये 6% आईआरआर वाले प्रोडक्ट में क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज मैं पैसा डाल रहा हूँ, वो पैसा जो म्यूचुअल फंड में जा रहा है ना, वो बढ़ेगा तो आई वुड बी हैप्पी। बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि 15 साल की बेटी के लिए मुझे पैसा एजुकेशन के लिए चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मुझे पैसे चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए आप रिटर्न्स सिर्फ कैलकुलेट मत करिए। You go ahead with this kind of fixed investment instruments, fixed return instruments, ताकि आपका गोल उस वक्त का है, हो सकता है वो 7 लाख वाला गोल उस वक्त 10 लाख हो गया होगा, बट वो 7 लाख आपके लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। आज से 20 साल पहले 2002 की बात करते हैं, 2001 की बात करते हैं, किसी ने एलआईसी का एक गारंटेड प्लान आया था जीवन श्री करके, किसी ने लिया होगा, तो ही हैड स्पेंट लाइक 4 lakhs in a total span of say 15-16 years, और आज की डेट में उसको गारंटेड 18 लाख रुपए मिल रहे हैं, 18,10,000 रुपए। अभी आप मानो कि आज की डेट में उनको 18 लाख की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? हो सकता है कि उनकी शादी का खर्चा 50 लाख होगा, बट 18 लाख तो एक साथ आ गया ना, जो गारंटेड था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स रिटर्न प्लान में इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो व्हाट आई एडवाइज। वो कब? जब आपके पहले 3 पहलू क्लियर हो चुके हैं कि आप स्टेज 1 क्रॉस कर लिए,
सुपर मारियो जो हम गेम खेलते थे, पहला स्टेज क्रॉस किया दूसरे स्टेज में गए, दूसरा स्टेज क्रॉस किया तीसरे स्टेज में गए, तीसरा स्टेज क्रॉस किया तो चौथे स्टेज में जाओ। तो इस हिसाब से स्टेज वाइज प्रोग्रेशन इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। तो इस हिसाब से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वाले प्लान है, आईसीआईसी का मैंने एग्जांपल दिया, मान लो ऐसा एचडीएफसी का एक प्लान है कि अब आपने डिसाइड किया कि मैं यार 50-50 हजार रुपए डालना चाहता हूँ 12 साल के लिए, और मेरी बच्ची जब आज से 12 साल के बाद वो 13-14 साल की या 15 साल की होगी, तब से लेके वो जब 25 की होगी तब तक मेरा खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, तो आप 50-50 हजार डाल रहे हो, वो आपको 1-1 लाख होके उस वक्त 12 साल मिलेगा। सो योर ऑब्जेक्टिव इज सॉल्व हियर। आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिटर्न इज नॉट एवरीथिंग। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, रिटर्न्स इज नॉट एवरीथिंग और रिस्क इज नॉट एवरीथिंग। सो डाइवर्सिफाइंग रिस्क, मैनेजिंग योर ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से बहुत सारे प्लान होते हैं। यू कैन चेक विथ योर फाइनेंशियल प्लानर, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, किसी और से बात कर सकते हो, किसी से बात करके आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि जो फिक्स 15 साल 20 साल 25 साल वाले टाइम फ्रेम में आपको गारंटेड पैसा दे। इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है, जो ऑलमोस्ट द लास्ट सेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो है अपॉर्चुनिस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका टाइटल मैंने ये रखा है ये सेगमेंट का कि अपॉर्चुनिस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब क्या, कि मैं कोई एक्टिवली सोच के नहीं चल रहा हूं कि ये करना ही है, ये होगा ही, ऐसा नहीं है, बट मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से पैसों को पैसा बनाने में यूज करूंगा। ठीक है, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आता है जो बहुत इजी है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, और अभी तो एक सीजन भी चल रहा है, दैट इज आईपीओ, विच इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है कि मान लो हम सब ने मिलके 10 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, कंपनी में कुछ धंधा कर रहे हैं और कंपनी अच्छा करने लगी है। नाउ वी वांट टू लिस्ट दिस कंपनी ऑन दी एनएसई एंड बीएसई, मुझे इसमें लिस्ट करवाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, लिस्टिंग करवाने के लिए आई विल हैव टू गिव अ पब्लिक ऑफरिंग। लोगों को शेयर्स देना होगा कि भाई तुम ये शेयर्स खरीदो, तब जाके ये पब्लिक लिस्टिंग हो सकती है। नाम से जैसे सजेस्ट करता है, इनिशियल मतलब पहली बार, पब्लिक मतलब लोगों के लिए ऑफर है ये। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें पैसा कैसे बनता है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे आपके मेरे जैसे लोगों के लिए 15,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। आप अपने अकाउंट में जो एफडी में या उसमें पैसा रखते हो उसको यूज कर सकते हो। वो पैसे से आपने आईपीओ अप्लाई किया। आईपीओ जैसे ही आप अप्लाई करते हो कि लिस्टिंग के टाइम पे, लिस्टिंग 10 दिन के अंदर हो जाता है। आज आपने अप्लाई किया और 10वें दिन पे उसका लिस्टिंग हो जाएगा एट मैक्स, तो 10 दिन के अंदर आपका रिटर्न आ जाएगा। 15,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसमें, और एक्चुअली मैक्सिमम भी 15,000 ही है, क्योंकि रिटेल में तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मंडे को या ट्यूसडे को, आप लोगों ने सुना होगा एंजल ब्रोकिंग करके, तो एंजल ब्रोकिंग का एक आईपीओ आ रहा है ट्यूसडे को। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को, आई एम सेइंग 22 सितंबर। आपने एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ लगाया, 15,000 रुपए डाले, उसमें अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है। अगर आपको लॉटरी लग गई तो 10 दिन के बाद जब लिस्टिंग होगा ना, तो 2,000 रुपए मिलेंगे। यार 15,000 पे 2,000 रुपए मिलना मतलब रिटर्न कितना हुआ, तो ऑलमोस्ट 1/7, मतलब 14% का रिटर्न बैठा आपका। अभी 14% का जो रिटर्न है वो कैसे बना आपका, 10 दिन के अंदर। तो एन्युअलाइज रिटर्न देखो तो कितना गुना हो गया। तो इट इज अ बेटर थिंग टू हैव कि एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ अप्लाई कर दो। हो सकता है कि नहीं लगे, नहीं लगा तो नुकसान तो कुछ है नहीं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव कम अक्रॉस एंड आई विल एंश्योर कि हाँ भाई चलो मैं ये करता हूं। ठीक है, सो दिस इज योर आईपीओ। इसके बाद आता है ऐसा ही बायबैक एंड ओएफएस, विच इज ऑल्सो स्टॉक मार्केट डिपेंडेंट। वो बहुत एक्सपर्ट चीज है, तो आप लोगों को अपने ब्रोकर से बात करके कर सकते हो, विच इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एवरीवन। तो इसीलिए आईपीओ इज वन सच थिंग दैट यू शुड हैव, अपॉर्चुनिस्टिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें। इसके बाद आता है कि आपका पोर्टफोलियो। एक्टिव शेयर्स में भी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके पास पैसा बचा है, आपके पास नॉलेज है। बड़ी कंपनीज को चूज करो, आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचयूएल हो गया, पीएनजी हो गया, आपका कोलगेट हो गया। ये सारी कंपनीज अच्छी है, आप सालों से इनको देखते आ रहे हो, आप उनकी प्रोडक्ट्स को यूज करते हो। सो यू कैन यूज दोज ऑप्शंस
ये सारे स्टॉक्स में जब मार्केट गिरता है तब पैसा लगा सकते हो। इस चीज में अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत गिर गया। जैसे मार्च महीने में 12,000 का जो निफ्टी का इंडेक्स था वो कम होके सीधा 8,000, 8,500, 7,500 के लेवल पे आ गया। सो उस वक्त के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती है, हमेशा नहीं मिलती है कि जब आपको कोई लेवल से मार्केट 20% से ज्यादा करेक्ट होता दिखे, उस वक्त इंडेक्स फंड में पैसा डालना इज द वाइज डिसीजन। इंडेक्स फंड क्या होता है? ये आप बोलोगे यार ये नया कुछ लेके आया, तो नया नहीं। इंडेक्स फंड मतलब देखो, निफ्टी जो है या सेंसेक्स है उसको इंडेक्स बोलते हैं कि ये आपके ओवरऑल शेयर मार्केट का एक मार्कर है कि आपका शेयर मार्केट कैसे जा रहा है। तो निफ्टी 50 कंपनियों का एक मिक्स्ड इंडेक्स है, वेटेड एवरेज के हिसाब से बनाया हुआ, और सेंसेक्स है वो 30 कंपनियों का एक मिक्स है। तो ये चीजें जब 20-25% गिरती है ना, तो आपको मालूम होता है कि इन अ लॉन्ग रन 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ये वापस ऊपर आएगी। और कोई भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा मार्कर होता है कि आपकी कंपनियां डूब सकती है। बहुत सारी कंपनी कैन गो रॉन्ग। द फेल्यूर इज नॉट डिजास्टर, मतलब फेल्यूर इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप 10 कंपनी देखोगे तो 2 फेल होती है। तो कंपनीज कैन गो रॉन्ग, बट इकोनॉमी को अच्छे से करने के लिए जो कंपनी बुरा करती है ना, उसको इंडेक्स से निकाल देते हैं और नई अच्छी कंपनी को डाल देते हैं। तो क्या होता है, इंडेक्स थोड़ा और ऊपर जाता है। तो ये इंडेक्स मैनेजमेंट जब होता है गवर्नमेंट की ओर से या सेबी की ओर से या मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओर से, तो इंडेक्स जब भी ऐसा करेक्ट होता है ना, तो पैसा डालना चाहिए। तो कहां से डाले, कैसे डाले? तो यू शुड हैव अ डीमैट अकाउंट। आप सबको मालूम है डीमैट अकाउंट कैसे खुलता है। बहुत सारे ब्रोकर है, ऑनलाइन ब्रोकर हो गया जीरोदा, 5पैसा, और आपको नॉर्मल ब्रोकर हो गए, रूटीन वाले, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान हो गया, ट्रेडबुल्स हो गया, ऐसे बहुत सारे, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, बहुत सारी कंपनीज के आपको डीमैट अकाउंट होते हैं। वो डीमैट अकाउंट में ऐसे मौके पे निफ्टी 20, NIFTY, निफ्टी 20 मतलब मधुमक्खी वाली बी, BEES। तो निफ्टी 20 इज द एग्जैक्ट कॉम्पोजाइट ऑफ निफ्टी। तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। जिस दिन 8,000, 8,500 का निफ्टी था, मैंने अगर 20,000 रुपए भी पड़े हैं और मैंने सोचा कि यार 20,000 रुपए ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में मैं डाल देता हूँ, हो सकता है कि 2 साल के बाद तो ऊपर आएगा, तो एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सर, मार्च के बाद आज की डेट में वो इंडेक्स बढ़ के 3,500 रुपए बढ़ गया। अभी आप सोचो, मैंने अगर वो चीज 8,000 में खरीदी है तो उसके आज 11,300, 11,500 हो गए। सो आई हैव ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। तो इसको लिए आपको क्या करना होगा, एक्टिव मार्केट थोड़ा ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप न्यूज न्यूज को सब्सक्राइब करके रखते हैं, एंड्रॉइड या iOS वाले क्या करते हैं, हम टाइम्स ऑफ इंडिया, मनी कंट्रोल, ऐसे 2-4 साइट्स को तो हम डाउनलोड करके रखते हैं ऐप्स को। ऊपर से दिखाएगा कि सेंसेक्स हैड सीन द बिगेस्ट ब्लड बाथ in last 3 years. It fell by say 2,000 points, या निफ्टी fell by 800 points। तो ऐसा जब न्यूज आता है ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कुछ हुआ है। उससे अगले 2-3 दिन आप ऑब्जर्व करो। अगर 10-20% का कोई बड़ा गैप आया है तो टेक दैट अपॉर्चुनिटी। 20,000, 25,000, 50,000, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी कैपेसिटी, जैसी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। ये कोई गारंटेड प्रोडक्ट नहीं, बट ये अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। एंड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज। लो कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं इसमें। डीमेट में आपने 1 लाख रुपए का चीज लिया तो 200 रुपए का खर्चा है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है उसमें। तो ये चीज आप जब इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। ठीक है, तो ये हो गए अपॉर्चुनिस्टिक टाइप। इसमें एक और भी चीज होती है अपॉर्चुनिटी में, कि जो बड़े लोग जिनका 2 लाख रुपए पगार है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका 2 लाख रुपए पगार है, तो वैसे लोगों को क्या करना चाहिए कि आपके पास पैसा बच रहा है और आपके अकाउंट में 3-4-5 लाख बचे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स। बहुत सारी कंपनीज और ये सब होते हैं कि आपको लगता है कि मुझे रिस्क लेना है, तो यू कैन गिव देम फॉर पीएमएस मैनेजमेंट। पीएमएस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम। आपने उनको 5 लाख दिए, वो ट्रेडिंग करते रहेंगे, आज सुबह लिया, कल बेचा, 2 दिन के बाद बेचा, 2 दिन के बाद लिया, ये सारी चीजें करते रहेंगे एक्टिवली। माय फ्रेंड्स, नेवर गेट इनटू दिस थिंग्स एक्टिवली। प्लीज प्लीज प्लीज, कभी भी इसमें आप एक्टिवली मत घुसिएगा unless and until you feel that you are an expert of this market, and I think nobody is an expert। हमारा जो लास्ट इसमें लर्न एंड ग्रो में सेमिनार था, उसमें सागर भाई, जो हमारे सागर दवे है, उन्होंने बताया था कि 2 ही लोग मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक जो इंसान लायर है, जो झूठा इंसान है, और दूसरा भगवान।
तो मार्केट प्रेडिक्शन इज नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेडिंग इज नॉट फॉर अस, इट इज फॉर पीपल with abundance of money, people with abundance of knowledge and technical aspects, जिनका नॉर्मल सा आपका मेरे जैसा लाइफ है, मेरे जैसा आपका जैसा हम वर्किंग क्लास के लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, उनको ये सब करना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में पैसा डूबता है और डूबता ही है। I have seen 1,000 people and I have not seen one person who has earned continuously with trading. So please avoid it completely. वो भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ट्रेडिंग क्या है वो बता के भी वो ना करने की सलाह भी मैं अपने एंड से ये समझता हूँ कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑलमोस्ट all about the investment plannings and how should you plan your investments and all. So in a nutshell, I'll once again summarize for you. First, buy 15 lakhs of Mediclaim right away. Don't wait for it. आपके पास नहीं है तो ये पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज, buy at least 1 crore of term plan if you don't have, and if you can afford to have one more, please add up to 10x of your annual income. एक आपकी annual income 15 लाख है तो have it for 1.5 crore at least. Third thing, आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स बताई है उसमें पैसा डाल दीजिए, इमरजेंसी फंड को मैनेज कर लीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, 5, 7, 10 साल के लिए पैसा डालिए। कितना डालना चाहिए? तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब 1 लाख रुपए आपकी सैलरी आती है, 20,000 रुपए रेंट गया, 30,000 रुपए आपके घर का खर्चा है, 10,000 रुपए आपके गाड़ी का इनकम गया, मतलब गाड़ी का इंस्टॉलमेंट गया, बचा कितना? 40,000 रुपए बचे। तो 10 to 15% ऑफ दैट 40,000 आप डाल दीजिए। मतलब 40,000 का 10% मतलब क्या? 4,000, 5,000 रुपए ये एसआईपी में डालिए सर। ये 5,000 रुपए आपने कभी कमाए नहीं थे, ऐसे करके डालिए। आई बेट ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 7, 10 years you would thank me, you would thank Rajneesh for having this kind of a discussion, क्योंकि वो आपका कॉर्पस बनेगा, वो आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन द मार्केट इन अ पैसिव वे होगा, जिससे आपका पैसा बनेगा, जिससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, आईपीओ आता है, करना ही है बस। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, पैसा मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और उसके बाद इंडेक्स फंड जो निफ्टी 20 की बात की, वो भी आपको डीमैट से ही पता चलेगी। और अच्छी कंपनीज के शेयर, कभी कभार ऐसा हुआ कि यार मेरे पास बोनस आया है, ये दिवाली के टाइम पे 16,000 का रूल है और 30% टैक्स स्लैब के बाद मेरा 11,000 रुपए बचे हैं, क्या करूं? मत खर्चा करो सर। 11,000 का आईटीसी, एचयूएल और रिलायंस या एचडीएफसी लेके रख दो, उसको देखो ही मत। ऐसा समझो कि मेरे को दिवाली पे बोनस नहीं मिलता था। 5-10 साल में वो आपका पैसा जिस हिसाब से दुगना, त्रिगुना, चौगुना होगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस हिसाब से एसेट्स बनते हैं। पैसा पैसे को कमाता है, उसी को बोलते हैं। और ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई है ना, वो सारी की सारी चीजें मैं खुद करता हूँ अपने, और वही चीज मैंने आपको बताई है। और मैं आई होप कि मतलब आई वाज क्लियर व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग थिंग्स वन आफ्टर द अदर। और बहुत सारे लोगों को चीजें मालूम भी होगी, बहुत सारे लोग ये सब चीजें करते होंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं बताई। बट आप सब लोग जो हो, उनके लिए जिनको कुछ थोड़ा बहुत, कुछ 2 चीजों का मालूम था, 3 का नहीं था, उनके लिए ये 3 नई चीज हुई होगी। एंड आई थिंक दैट आई हैव एडेड a little value to whatever your knowledge was, whatever your feeling was. And now I think Rajneesh bhai, we can take few questions. If someone has any question on anything that I have described. Yes, Rajneesh bhai, you're on mute. Yes. No, I think it was a good presentation part. Already a lot of good, very good. This feedback has come for you, right? You can see in the comments section. Yes. Okay. Now people are saying very well explained. There was a question from Venu. If you have answered it, I don't know. I think I must have missed the I'll question. tell you. His question is that instead of SIP every month that we are doing in small amounts, return may be 7 to 15%. It may vary.
So he says that will it be is it good to invest per month or is it good to invest in a lump sum once in a year in different mutual funds so that Okay. you get good returns in long term? So So he wants to know if he's wrong or right. okay. No, I'll explain. Very good question actually. मैंने ये चीज को कवर नहीं किया. That's actually a mistake from my side. See, आप है ना, जैसे मैंने बोला कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना, मार्केट को ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये गिरेगा कि ऊपर जाएगा, ये चीज कोई नहीं बता सकता. It is very dependent on the economy, on the financial situation of the company particularly. बहुत सारी चीजों का मिक्स होके मार्केट अपने हिसाब से चलता है. तो आप, मैं या कोई भी एक्सपर्ट टाइम नहीं कर सकते कौन सा टाइम सही है. आज का टाइम सही है क्या? आज मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 50,000 रुपए डालता हूं. मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि हम लोग आलू लेना चाहते हैं, ठीक है, पोटेटोज. तो हमने ऐसा डिसाइड किया रजनीश भाई कि 100 रुपए के आज आलू कितने आएंगे. मान लो 20 रुपए किलो का भाव है आज का. हमने 5 किलो आलू ले लिए, ठीक है. तो मुझे 5 किलो आलू मिले. अभी इसकी जगह पे मेरे को 5 किलो आलू की जरूरत आज तो है नहीं, ठीक है. ये आलू 1 साल के बाद खाने वाला हूँ. तो मैंने 5 किलो ले लिया. इसकी जगह मैं ये करता कि भाई 5 किलो को मैं 500 ग्राम करके लेता हूं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. तो क्या मेरे को कुछ फायदा होगा? लेट्स सी विद एन एग्जांपल कि आज की डेट में 20 रुपए का भाव था तो मैंने 10 रुपए के आलू ले लिए 500 ग्राम. अगले महीने का भाव हो सकता है कि आलू का दाम 20 रुपए किलो की जगह 16 रुपए किलो हुआ. तो 500 ग्राम मेरे को 8 रुपए में मिला. उसके बाद हो सकता है कि वो 30 रुपए भी हो गया आलू, तो मेरे को 15 रुपए में मिला. इस हिसाब से मैंने अलग अलग भाव पे, अलग अलग प्राइस पे मैंने अपना जो आलू था वो अलग अलग प्राइस पे लिया. अब मैं जब 1 साल के बाद इसको बेचना चाहता हूं तो जब भी ये प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरे एवरेज है ना, क्योंकि मैंने लोअर लेवल पे भी खरीदारी की है, मैंने एवरेज प्राइस पे भी खरीदारी की है, मैंने ज्यादा प्राइस पे भी खरीदारी की है. तो तीनों प्राइस पे खरीदने के बाद व्हेन आई वुड बी सेलिंग इट, तो इट वुड बी एट अ हायर लेवल. तो मेरा जो एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपी है ना, तो मेरे यूनिट्स जो आते हैं ना वो मंथली में बहुत बढ़िया आएंगे हमेशा. क्योंकि आप टाइम कर सकते हो मार्केट को. इफ यू आर दैट ग्रेट एन एनालिस्ट और दैट ग्रेट एन अपॉर्चुनिस्ट और दैट ग्रेट लकी मैस्कट, देन यू कैन टाइम एंड यू कैन हैव बेटर रिटर्न. जैसे मार्च में आपको जब निफ्टी 7,600 7,700 पे आया, उस वक्त आपने एक साथ पैसा डाल दिया ना तो यू वुड हैव अर्न बेटर रिटर्न. बट अगर उस वक्त नहीं डाला, मेरे जैसे आप करते थे कि मैं हर महीने ये 10,000 रुपए डाल ही रहा हूं, तो मेरा रिटर्न जो बंदा फरवरी में एक साथ पैसा डाल दिया था ना उससे बेहतर है. क्योंकि मतलब इसीलिए आप जब एवरेज करते हो, हर प्राइस पे करते हो, तो आपकी एक डिसिप्लिन मेंटेन होती है. हर एक पिक्स एंड ट्रॉज ऑफ द मार्केट यू आर इन्वेस्टिंग, तो हर एक पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करते हो. और ग्राफिकली भी आप देखोगे तो आप एवरेज लाइन के ऊपर जब भी जाओगे तो आपको सारा जो यूनिट है वो मिलेगा. सो आई पर्सनली फील SIP इज द बेस्ट वे, unless and until you are like lucky mascot or very very much like a god or an expert. Otherwise you should not time the market. सिवा कि ऐसा जब मौका मिले और आपके पास 25-50 हजार पड़े और आपने डाल दिए, that's a different story altogether. That's an opportunist. ठीक है. और वो मौका हमेशा नहीं मिलता है, मौका हमेशा सही नहीं होता है. क्योंकि मार्च के 6 तारीख के अराउंड जब मार्केट 500 पॉइंट गिरा था ना, तो आप सोचोगे कि यार अपॉर्चुनिस्ट हूं मैंने 50,000 डाल दिया और उसके बाद मार्केट गिरा सीधा 1,500 पॉइंट निफ्टी गिर गया. तो उस वक्त सही नहीं बैठेगा. So now the second question that I can see on the screen is PPF a good investment? Absolutely yes. But any investment should be an objective oriented investment. तो PPF में मैं पैसा क्यों डालूंगा? PPF में मैं पैसा तब डालूंगा कि 15 साल पे मुझे एक लमसम अमाउंट चाहिए, क्योंकि PPF का जो पीरियड है वो 15 साल का है. दूसरा, आज जो PPF का पैसा डालता हूँ वो मेरे को अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मुझे रिफंड, मतलब मैं क्लेम कर सकता हूँ उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे. तो PPF इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टूल. हाउएवर, PPF से एक अच्छा रिटर्न 15 साल के होराइजन में जब आप देखते हो, तो PPF वैसे भी गवर्नमेंट का ऐसा है कि हर साल रिटर्न कम होता जाता है. पहले 8% था, अब 7.5 हुआ, अब 7.1 हो गया. गवर्नमेंट का रिटर्न बदलता रहेगा. सो यू शुड डिवाइड. से फॉर एग्जांपल आप 50,000 PPF में डालते हो साल का, तो इन्वेस्ट 25,000 इन PPF
वो आप लमसम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पीपीएफ में, क्योंकि वो मार्केट डिपेंडेंट नहीं है। बट बाकी 25,000 को ELSS विच इज कॉल्ड एज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो 3 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, आप 3 साल में पैसा नहीं निकाल सकते, और उसको आप 10-12 साल के लिए कंटिन्यू करो, तो क्या होगा कि आपके लिए लिक्विडिटी भी बना रहेगा विद दैट 25,000 दैट यू हैव पार्टेड फॉर ELSS, और उसमें रिटर्न भी उससे बेहतर बैठने के चांसेस है। So at our age of 30, 35 or 40, you can take that calculated risk of 50% diverting from PPF to ELSS. So for tax benefit only you are investing in PPF, और ऐसा है कि नहीं, tax benefit is not my way, but I want a security of government और मुझे पैसा डालना है, go ahead with PPF. मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख की, 1.5 लाख की, आप डालते रहो, 1.5 लाख। अगर आपके पास पैसा बचता है तो डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपीएफ इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट, 15 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बाद बहुत अच्छा पैसा बनेगा। I think I hope I have answered it. So there was another question: which of the said investment gives tax benefit? Okay, very good question, Abhishek ji. अभिषेक भाई, अभी मैं आपका आंसर करता हूं कि इन्वेस्टमेंट टैक्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। रजनीश भाई, इफ यू अलाउ मी फॉर 5 minutes, I will. प्लीज टेक। थैंक्स यार। तो पहली चीज है, इनकम टैक्स में जो इनकम हमारी आती है उसके हिसाब से ATC इज द फर्स्ट सेक्शन। ATC में आपको 1.5 लाख की लिमिट मिलती है, 1.5 lakhs every year you can claim under section ATC for any earning person। तो अभी ATC में क्या क्या चीजें आती है? पहला हुआ PPF, जो हमने मैडम को समझाया कि 15 साल के लिए आप अपने बैंक के साथ खोल सकते हो। दूसरा हुआ PF, हमारा प्रोविडेंट फंड, जो हम कंपनी में हमारे हर महीने की सैलरी से 3,000 4,000 बेसिक के 12.5% के हिसाब से जो कटता है, दैट इज योर PF, प्रोविडेंट फंड, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ATC। ठीक है, दूसरा हुआ। तीसरा, ऑल योर इंश्योरेंसेस, इंश्योरेंस, चाहे वो आपका टर्म प्लान हुआ, चाहे वो आपका LIC का ट्रेडिशनल प्लान हुआ, चाहे वो ICICI का जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लान हुआ, चाहे HDFC का ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लान हुआ, या टाटा का ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लान हुआ, कोई भी इंश्योरेंस हुआ, that also is part of ATC। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ELSS, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स है। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स है जो 3 साल के लिए लॉक रहते हैं, देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी में ही, जो लार्ज मिड कैप या मल्टी कैप की तरह ही काम करते हैं, उनका इक्विटी में ही एक्सपोजर है, बट उसमें आप 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, वो ELSS कैटेगरी हो गया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ATC। तो और एक अलग टाइप होता है कि कुछ लॉन्ग टर्म FDs होती है जो 5-7 साल के लिए नेशनल सेविंग स्कीम्स होती है, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ ATC है, जो हम जनरली रूटीन में फॉलो नहीं करते हैं, लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, जो जिनकी सैलरी 5, 10, 15, 20 लाख, 25 लाख तक है, वो लोग बाकी ऑप्शंस में नहीं जाते क्योंकि उनका PF अच्छा जाता है, दे चूज टू हैव एन इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस से उनका हो जाता है, तो 1.5 लाख तक आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। नाउ सेकंड सेक्शन कम्स इज ATD, AT दिल्ली, पहला था AT कलकत्ता, नाउ इज AT दिल्ली। So ATD is basically your health insurance। इसमें आपको पर्सनल, मतलब आपके खुद के और पेरेंट्स के, ये 3 टाइप होते हैं। तो आपकी खुद के फैमिली, मतलब सेल्फ, वाइफ, किड्स, इन लोगों का मिला के साल का मैक्सिमम 25,000 इसमें आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट में, कि आप अगर इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 भरते हो तो दैट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम, और उसके बाद जो आती है वो इनकम पे आपको कंप्यूट होगा आपका टैक्स। सो बेसिकली ATD इज योर इंश्योरेंस। अगर मेडिक्लेम आपके पेरेंट्स का भी आपने ले रखा है तो आपको पेरेंट्स के लिए भी और 25,000 रुपए मिलते हैं, कि भाई 25 आप पेरेंट्स का भर रहे हो, उनका प्रीमियम आप 22,000 भर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टैक्स डिडक्टेबल फॉर यू। ये होगा सेकेंड सेक्शन ATD, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है पूरा, ऑल हेल्थ इंश्योरेंसेस। ठीक है, सुपर टॉपअप हो गया, बेसिक प्लान जो भी हो गया, दैट हेल्थ इंश्योरेंस इज कवर्ड अंडर ATD। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ATCCD, कॉफी कैफे डे, ATCCD। So ATCCD is basically NPS, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जिसको हम बोलते हैं। तो NPS इज अ टूल बाय गवर्नमेंट, जो रिटायरमेंट के लिए उन्होंने डिसाइड किया है, जिसकी लिमिट 50,000 रुपए रखी है, कि मैं एवरी ईयर 50,000 उसमें डालूंगा तो मेरी इनकम में मेरे को रिबेट मिलेगा। पर वो 50,000 जाता कहां पे है? सो NPS के तौर पे आपको, जैसे आपका पैन नंबर होता है,
परमानेंट अकाउंट नंबर, वैसे आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है आप जब एनपीएस में आपका अकाउंट खोलते हो, विच इज एन ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीटली। एनपीएस की वेबसाइट आप सीधा एनपीएस लॉगिन या एनपीएस रजिस्टर करते हो गूगल पे, आपको तुरंत मिल जाएगा, ऑनलाइन करना है। तो पेंशन के लिए आप जब 50,000 डालते हो, दैट 50,000 विल बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये चीजों में वो इन्वेस्ट करेंगे, और ये पैसा जब आप 60 इयर्स ओल्ड होगे, व्हेन यू टर्न 60, तब तक आप उसको छू नहीं सकते। यू कांट टेक दैट मनी। आपको वो पैसा 60 साल की एज में ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मान लो कि मैं 30 साल का हूं, मैंने अगले 30 साल में 50-50 हजार रुपए हर साल डाले टैक्स बेनिफिट के लिए, तो मैंने 15 लाख रुपए डाल दिए मेरे अकाउंट में, और उसके ऊपर मेरे को रिटर्न मिलता था, ये सब मिलके और 15 लाख मेरे जुड़ गए। तो 30 लाख रुपए में जब 60 का हुआ, तो मेरे एनपीएस अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा हुए हैं। तो नाउ आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन। उस वक्त ऐसा है कि 40% ऑफ द टोटल कॉर्पस, 40% ऑफ द टोटल कॉर्पस आई कैन विड्रॉ। तो मतलब जो 30 लाख था उसमें से 12 लाख में जब 60 का हुआ तो विड्रॉ कर दूं। तो मैंने 12 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अगले बाकी के 18 लाख का क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये पेंशन स्कीम है, तुम्हें तो वैसे भी तुम प्राइवेट में हो, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हो, तो तुम्हें पेंशन तो मिलेगा नहीं। हम तो गवर्नमेंट कंपनी में भी पेंशन बंद कर रहे हैं, तो क्या करोगे? तो बाकी जो 60, मतलब जो मेरे 18 लाख बचे, उस वक्त के एन्युइटी प्लान। सो व्हाट इज एन्युइटी प्लान? सो एन्युइटी प्लान इज, आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% के अराउंड है, 5.6% के अराउंड। तो आज का एन्युइटी रेट 5.6% हुआ। तो उस वक्त एट द 60th ईयर ऑफ योर लाइफ, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी एन्युइटी का रेट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पेंशन मिलता जाएगा। मान लो उस वक्त 5% है, 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो 90,000, तो साल का 90,000 आपका पेंशन आना चालू हो जाएगा अंटिल यू लिव। आपको कुछ हो गया तो आपकी वाइफ को उसका पेंशन आना चालू होगा, उनको कुछ हो गया तो वो पैसा वापस मिल जाएगा। सो दैट इज एन एनपीएस, जो टैक्स बेनिफिट के लिए ऑप्शन है, एटीसीसीडी। व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट पीपल इज कि एटीसी पूरा कंप्लीट करो, एटीडी हो सके उतना करो, और एटीसीसीडी जो लोग 30% टैक्स स्लैब में है उन्हीं को करना एडवाइजेबल है। जो आपका टैक्स अगर 30% स्लैब में आते हो तो एटीसीसीडी करो। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। आप नौकरी करते हो तो 50,000 रुपए आपको वैसे ही आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो एनपीएस जो मैंने बताया वो मार्केट लिंक्ड है, क्योंकि उसमें पार्ट ऑफ इक्विटी भी है, पार्ट ऑफ डेट भी है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 90 दिन के इंटरेस्ट डिफरेंस पे होती है। आज के 90 दिन का इंटरेस्ट 5.5% है, अगले 90 दिन का वो 4% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। और मार्केट जो डिपेंडेंसी वाला इक्विटी है, दैट इज एब्सोल्युटली मार्केट डिपेंडेंट। ठीक है। तो ये टैक्स बेनिफिट लेने के टैक्स के टाइप्स हो गए, या टैक्स डिडक्शन के टाइप हो गए। इसके अलावा होता है होम लोन। अगर आपने खुद ने घर खरीदा है, और घर कब खरीदना चाहिए? जब आपके पास इनफ कैश फ्लो हो, आपकी जरूरत हो, तब घर खरीदा है। तो घर की जो लोन है उसका जो इंटरेस्ट पे करते हो, आज की डेट में 7-7.5% का जो इंटरेस्ट है, तो सालाना इंटरेस्ट की अमाउंट अप टू 2 लाख आपने पूरे साल में हर महीने के ईएमआई के हिसाब से, साल में आपने अगर 1,80,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे किया, तो दैट इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी क्लेम अंडर टैक्स। ठीक है। उसके बाद होता है कि आपने घर नहीं लिया बट आप रेंट पे रहते हो, देन इट इज कॉल्ड एज एचआरए। हाउसिंग रेंट जो अलाउंस होता है वो एचआरए आप क्लेम कर सकते हो। उसके लिए भी एक इक्वेशन है, आप सीधा क्लियर टैक्स करके डाउन वेबसाइट पे जाओ, एचआरए कैलकुलेटर देखो, आपका बेसिक सैलरी डालो, आपका डीए डालो, आपका रेंट डालो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। मान लो मेरा बेसिक 30,000 रुपए है, मेरा रेंट 25,000 रुपए है, तो मेरे को टैक्स बेनिफिट 17,000 रुपए मिलेगा अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेड। वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ ग्रेड है। तो एचआरए भी आपका टैक्स डिडक्शन में मिलता है। एंड वन मोर एस्पेक्ट इज फॉर द बिगिनर्स, करियर बिगिनर्स जो है उनके लिए एटी ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एजुकेशन। सो 80 इज फॉर एजुकेशनल लोन। अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है 10 लाख का, 15 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है दैट इज कंप्लीटली टैक्स डिडक्टिबल।
मतलब आप साल का 20,000 रुपए अगर टैक्स मतलब इंटरेस्ट पे करते हो आपके एजुकेशन लोन का जो इंस्टॉलमेंट के तौर पे, दैट ऑल्सो कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल इनकम। तो इस हिसाब से टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ टैक्स अंडरस्टैंडिंग और टैक्स प्लानिंग। इस हिसाब से आपको टैक्स प्लान करना चाहिए और इस हिसाब से आपको इंस्ट्रूमेंट्स को चूज करना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स मिले। यस यस सर, दैट्स इट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई होप ये टैक्स वाला जो क्वेश्चन था वो क्लियर है। यस आई थिंक बिकॉज आपने इसको भी क्लियर कर दिया, यू हैव क्लियर्ड। हाँ, any other question can we? Okay, so we have one more question. Yes, can we divide to withdraw entire NPS amount at the age of 60? एक्चुअली इसमें ये है मैडम कि गवर्नमेंट ने आज की डेट में ये डिसाइड किया हुआ है कि यू कैन विथड्रॉ ओनली 40% ऑफ योर टोटल कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 और बाकी का जो पैसा है उसको आपको एन्युटी प्लान में ही डालना पड़ेगा बिकॉज दैट्स अ नेशनल पेंशन स्कीम। तो पेंशन ही लेना पड़ेगा 60% ऑफ द अमाउंट का और 40% आपको कॉर्पस में मिलेगा। बट दैट्स आल्सो अ वाइज डिसीजन। इफ यू आर इनटू 30% स्लैब, यू मस्ट डू दिस एट द 50% वॉल्यूम एवरी ईयर, क्योंकि आज आपका टैक्स तो 15,000 बच गया है ना मैडम। टुडे यू आर इन द 30% स्लैब और आपने 50,000 रुपए एनपीएस में डाले तो गवर्नमेंट आपको 15,000 तो टैक्स वापस करेगी इस साल का। तो 15 एक्चुअल योर आउटगो इज 35,000 ओनली। सो 35,000 डाल के आप 50,000 का बेनिफिट ले रहे हो। तो एट द एज ऑफ 60 जब आप 40% विड्रॉ करोगे, दैट विल आल्सो मेक अ ग्रेट डील फॉर यू। Okay. Right. Any other question, audience? You can ask us. Chat box में type करिए and we'll be answering that. अच्छा, एक क्वेश्चन जो है मैंने देखा था कि हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ गेव 111% रिटर्न्स, गोपाल का था। इफ यू आर लकी इन्वेस्टेड 1 लाख यू वुड हैव गॉट 2 lakhs इन 10 days। गोपाल भाई, आपको एक चीज समझाता हूं कि 1 लाख का ऐसे ही नहीं मिल जाएगा आईपीओ। आईपीओ के कुछ रूल्स है कि रिटेल, हम लोग, आप और मैं रिटेल है, जो 15,000 से लेकर 2 लाख तक का एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनके लिए लॉटरी होता है और लॉटरी में आपको 15,000 का ही शेयर मिल सकता है। जब लॉटरी होता है आईपीओ में तो मैक्सिमम दैट यू कैन गेट इज 15,000, क्योंकि आप और मैं रिटेल कैटेगरी के लोग हैं। तो मैक्सिमम दैट यू वुड हैव गॉट एज अ लकी मास्कॉट इज 15,000 का शेयर। बट 15,000 के ऊपर भी 17,000 का प्रॉफिट या 18,000 का प्रॉफिट इज अ ग्रेट थिंग टू हैव। आई वुड हैव एंजॉयड इट थरोली। ठीक है। और अगर आप 1-2 लाख ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात करते हो तो वो आईपीओ में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। आईपीओ करना है तो 15,000 का एप्लीकेशन करके लकी बनने के लिए क्या करना होता है, या तो आपके लक फेवर करने चाहिए या तो यू शुड बी अ ब्रेव हार्टेड पर्सन। यार हर एक आईपीओ, साल में 20 आईपीओ लगा है, 3 तो लगेंगे, 3 लगे तो भी 50,000 कमाऊंगा, 40,000 कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, जो भी मिला दैट्स माय अपॉर्चुनिटी एंड आई विल टेक दैट एट मैक्सिमम ऑफ एडवांटेज। आगे दूसरा, आईपीओ लॉटरी इन लॉट्स, राइट? यस यस, इट इज लॉट्स। बट आप लॉट एक ही, जब लॉटरी होती है रिटेल कैटेगरी के लिए आईपीओ में, तो एक एक लॉट ही गिना जाता है। रजनीश भाई बोले कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने 5 लॉट अप्लाई किए। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं गरीब हूँ, एक ही लॉट अप्लाई करूंगा। तो वो लोग बोलेंगे कि लॉटरी में 5 अप्लाई किया है, 10 अप्लाई किया है, 3 अप्लाई किया है, सबका एक ही गिना जाएगा। अगर रजनीश भाई का नाम लॉटरी में सिलेक्ट हुआ तो एक ही लॉट मिलेगा उनको। Okay. ठीक है। और बाकी किसी का सवाल था, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ 3,000 यू कैन कवर 20 lakhs। हाँ यार, वो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है ना, मेरे हिसाब से हमारे लिए सही नहीं बैठती है। Why I did not include in the entire discussion because I personally don't hold it, और नहीं करता हूं उसका रीजन है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है वो एक्सीडेंटल क्लेम्स के लिए होती है। अभी मेरे पास अगर टर्म प्लान है 1 करोड़ का या 2 करोड़ का टर्म प्लान है, व्हाई वुड आई नीड, अगर एक्सीडेंट में मेरे को कुछ हो गया तो फैमिली को मिलेगा ना 2 करोड़ रुपए, मेरे को 20 लाख या 10 लाख का लेने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी बात, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आपको एक्सीडेंट हुआ, आपका फ्रैक्चर हो गया, कुछ बड़ा नुकसान हो गया और आप घर पे रहे, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर आपका 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपए एवरी वीक आपको कंपेंसेशन मिलेगा घर पे बैठ के। इट्स अ गुड थिंग टू हैव, बट फॉर बिजनेस क्लास पीपल
आप और मेरे जैसे लोग जो नौकरी करते हैं उनको सिक लीव्स होती है। आप सिक लीव जब अप्लाई करते हो तो आपको सैलरी पूरी मिलती है। तो उनका रूल ऐसा है एक्सीडेंटल पॉलिसी का कि सपोज आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी ली थी और आपको 20,000 मिलने थे, तो वो लोग एक प्रूफ मांगेंगे कि प्रूव इट दैट योर कंपनी हैज नॉट पेड यू द सैलरी, ओके। नॉट द केस फॉर अस। ठीक है, तो इसीलिए पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इज व्हाट आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर। इसके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन था टर्म प्लान के बारे में, एक था रजनीश भाई। आई ओके। थिंक LIC का टर्म प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट बैकिंग के वाला। तो आई आंसर दैट क्वेश्चन। LIC का टर्म प्लान इज द बेस्ट थिंग टू हैव, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती है कि इतनी महंगी होती है कि आप कभी कभार ले नहीं पाते हो। आप समझो कि फाइजर का जो लिरिका था वो नॉर्मल ब्रांड से 5 गुना प्राइस पे था, तो लोग लिरिका से बेहतर है कि दूसरा प्रीगाबलिन यूज कर लेंगे। ठीक है, आज की डेट में बिल्डाग्लिप्टिन देखे तो पहले ऐसा था कि 45 रुपए का था, 5 रुपए में मिल रहा है, तो आप 5 रुपए वाला लोगे यार, 45 रुपए वाला क्यों ही लोगे। ठीक है, तो ये चीज है कि LIC हैज द बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ गारंटेड थिंग। इफ यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड दैट, हैव इट फ्रॉम LIC, इफ यू कैन अफोर्ड, क्योंकि इट इज एग्जैक्टली 2x द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम। तो अगर आप ICICI, HDFC या टाटा से लेते हो, तो उसमें अगर मान लो आपका 1 करोड़ का 20,000 रुपए प्रीमियम आता है, तो LIC में वो 40,000 के अराउंड आएगा। नाउ यू डिसाइड, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। तो मैं अपना एक एग्जांपल बता दूं, मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया है खुद के लिए। आई हैव टेकन 2 करोड़ ऑफ टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम अ प्राइवेट प्लेयर ICICI प्रूडेंशियल, जो मेरे को अच्छा लगा था, और 50 लाख का मैंने LIC से भी लिया है कि भाई हम दोनों को रखते हैं, 2.5 करोड़ का लेना तो क्या करें, दोनों का कर दिया। ठीक है, आज की डेट में ऐसा है कि अगर 5 साल के बाद मुझे और जरूरत लगेगी कि यार मेरे को और 2 करोड़ का लेना है, तो आई विल गो विद टाटा एंड HDFC, कि मैं डाइवर्सिफाई करूंगा। मैं हमेशा ये चीज मानता हूं, डाइवर्सिफाई वॉट एवर यू कैन, हाउ मच यू कैन। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है, which mutual funds are good now, small mid large as per new SEBI rule of minimum 25%, the small and mid have chance of more gains in coming months. Mutual funds are not for months, it is for years. If you are looking for returns in months, please stay away from mutual funds. वो 2 4 5 6 महीने 12 महीने की स्टोरी नहीं है, 5 साल 7 साल के लिए है, तभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। दूसरी बात, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छा करेंगे, ये ना मैं झूठ बोल सकता हूँ ना मैं भगवान हूँ, तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, हाउएवर हाउएवर डाइवर्सिफाई योर रिस्क और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करिए। यू वुड एंजॉय द गेन्स दैट यू विल हैव। और दूसरा एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन था कि सेबी का नया रूल जो है, वो सेबी का नया रूल सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप फंड्स के लिए है। कि भाई जो मल्टी कैप फंड आज की डेट में क्या करते थे कि उनको कोई रूल नहीं था, तो बोले 70% लार्ज कैप में डालो ना, रिस्क कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भाई डेफिनेशन ऑफ मल्टी कैप is not being justified by this kind of things। तो उन्होंने बोला कि भाई मल्टी कैप फंड को 25% लार्ज में, 25% मिड में और 25% स्मॉल में करना कंपलसरी है। बाकी 25% आपके विजडम के ऊपर है, आप जहां डालना है डाल दो, बट 25% के बिना आपका मल्टी कैप नहीं बन सकता। So that's a good step from SEBI in the benefit of investors, in the benefit of all the unit holders. So, Yes, sir. Parth, if suppose we invest in mutual fund say for 3 4 years, उसके हाँ, बाद स्टॉप कर देना चाहिए और शुड बी कीप ऑन कंटिन्यूइंग? क्योंकि सपोज आपने 30 साल की एज से स्टार्ट किया एंड आप 3 साल इन्वेस्ट करते हो, 4 साल इन्वेस्ट करते हैं, एंड आफ्टर 34 35 यू परचेज अ फ्लैट और यू परचेज समथिंग, आपको लगता है कि आपकी इनकम उतनी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड स्टॉप करते हैं एंड आप होम लोन की तरफ जाते हैं। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट इन दिस? शुड वन कंटिन्यू और शुड वन स्टॉप? देखिए अभी ये ऐसा है कि either of one I have to choose। if I am गन पॉइंट पे मुझे पूछा जाए ये चीज, तो मेरे को एक ही चीज को चुनना पड़ेगा। ठीक है, और इंडिविजुअल के लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि 35 पे मैंने फ्लैट ले लिया, आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड 10,000, तो मैं ये बोलूंगा कि कीप दैट मनी आइडल इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड विल ग्रो दिस मनी ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 15 5 7 years, अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो। और उससे उसमें एक काम करिए कि आप जो होम लोन स्टार्ट करते हैं ना, उसमें से कुछ 1,000 2,000 5,000 10,000 जो भी आप कर सकते हो ना, म्यूचुअल फंड में करिए, क्योंकि होम लोन का EMI विल रिमेन सेम,
सैलरी विल इंक्रीज फ्रॉम नेक्स्ट 2 years, 1 year, 2 year, 3 year के बाद। तो म्यूचुअल फंड का आदत जो है एसआईपी का, उसको मत छोड़िए, क्योंकि वो डिसिप्लिन है ना, दैट नोबडी कैन टीच यू। आपने जब खुद ने 10 साल किया है, 5 साल किया है, 7 साल किया है, देन ओनली यू विल कंटिन्यू दिस फॉर अनदर 15-20 years। सो इफ यू आर इन अ सिचुएशन तो कर सकते हो। राइट। Good insights for financial. Thanks, man. Thank you, Suhas bhai. In term insurance, there are some companies which give a cover up to 99 years. So shall we go ahead with such plans or take normal plan which covers up to 70-75 years? See, basic idea of term plan is to have a security at that tender age when this matters a lot. आप जब 85 के होंगे, आपके बेटे के घर या आपकी बेटी के घर भी बेटा 15 साल का, 17 साल का या 20 साल का होगा, उस वक्त आपके मरने पे या आपके जीने पे किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो उस वक्त आपके मरने से पैसा आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस नहीं पड़ेगा किसी की लाइफ में। सो इट इज बेटर टू हैव अ प्लान ऑफ 75 years। बट कुछ लोग होते हैं कि यार मैं 5,000 रुपए साल का ज्यादा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट सेफ और सिक्योर तो हो जाएगा, मरना तो है ही। 99 का प्लान लिया मतलब गारंटेड रिटर्न है। तो इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन। आइडियली 75 का होना इज मैंडेटरी। जो मैंडेटरी है वो 75 का है। अभी उसके ऊपर के लिए आप प्रीमियम कैलकुलेट करके देख लो कि यार 5,000 रुपए साल का ज्यादा देना चाहिए क्या 99 के लिए। तो गारंटी तो है, मैंने आज पैसे इन्वेस्ट किए, वो आ तो जाएंगे, जिसको भी जाए, बेटे को जाए, बेटी को जाए, उसके बेटे को, या मतलब ग्रैंडसन को जाए, या किसी को भी जाए। तो that you can decide। मतलब there is nothing called as ideal thing in this। mandatory is still 70-75। तब तक होता है कुछ भी तो भाई बड़ी तकलीफ है। ओके। HDFC has launched very good new term plans। Yes madam, see term plan के लिए मेरा ये मानना है कि नया प्लान पुराना प्लान इससे बेहतर है, मुझे बेसिक टर्म प्लान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आप टर्म प्लान लेते हो, उसका टर्म के एंड पे आपने 75 तक लिया और 75 इयर्स के ड्यूरेशन में आपने मान लो 10 लाख रुपए दिए हैं फॉर अ 2 करोड़ टर्म प्लान, और आपको जब 75 इयर्स होंगे तो आपको 10 लाख वापस मिल जाएंगे अगर आपको कुछ नहीं होता। ये सब लेने की जरूरत नहीं है। टेक प्योर वेनिला टर्म प्लान कि मेरे को कुछ हो तो पैसे मिलना चाहिए, बस। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर। उस बाकी चीजों के लिए एक्स्ट्रा 1,000 2,000 5,000 जो भी है मत दो ना। Not required actually। If we have money to invest, should we invest in buying property? Many people tell that investment in property is not good thing, as there will be no growth। मैडम प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हाउस इज अ प्रॉपर्टी, एंड आई डोंट अग्री टू द फैक्ट टू सम एक्सटेंट। कुछ लोगों को ऐसा हुआ है कि 40 लाख का घर 2 करोड़ का हो गया, बट 2 करोड़ का घर 6 करोड़ का होगा, आई रियली डाउट। ठीक है, तो मुझे आज की डेट में ऐसा लगता है कि इफ यू आर गोइंग टू स्टे इन द हाउस, इफ देयर इज अ नीड टू परचेज अ हाउस, आपको लगता है इमोशनली या सब तरीके से आपको लगता है कि मुझे घर खरीदना है, तभी घर खरीदिए, एंड दैट मेक्स अ गुड इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। परंतु इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गो विथ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसका रेंट आता हो। दुकान हो गया, ग्राउंड फ्लोर का शोरूम हो गया, कहीं पे कुछ ऑफिस हो गया। बट ऑफिस इन्वेस्टमेंट भी कोविड के टाइम के बाद मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया कि ऑफिस इन्वेस्टमेंट यू शुड होल्ड फॉर लाइक 2-3 years, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम या नए तरीके ये सब चालू होगा, तो इट इज बेटर टू हैव अ कमर्शियल प्लेस। क्योंकि कमर्शियल प्लेस क्या है कि वहां से आपको रेंट अच्छा मिलेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 35 से 40 हजार आएगा, जब 1 करोड़ के घर का रेंट 15 से 20 हजार रुपए आएगा या 22 हजार रुपए आएगा। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे हाउस प्रॉपर्टी, आई एम लिटिल ऑफ अ डिफरेंट ओपिनियन कि घर दूसरा। I agree. Good suggestion. That is a good suggestion. Investment in property is always. He was after 80, just kidding. Very thanks, man. I want you to live till 75 only because 75 के बाद, believe me, जो लोग 75 के हुए हैं ना, उसमें से 20% are enjoying their life। बाकी लोग तो ऐसे ही मर मर के जी रहे हैं भाई। उससे बेहतर है 75 के पहले निकल लो। Right। Any other questions, audience? You can just type। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन भी हो तो यार मेरे को भी आप काउंटर कर सकते हो यार। आई कैन नॉट बी राइट इन ऑल दी एस्पेक्ट्स, बट आई कैन हेल्प यू व्हाट आई डू
with what I. Parth, you can share your WhatsApp number if you are comfortable. So if, in case anybody wants to get in touch with you, they can get in Yes. touch with you. हाँ यार, मेरा नंबर आप मतलब कैसे Yeah, मैं बोल दूं? I'll type it. I'll type it. हाँ जी, कर दीजिए टाइप आप. 9980 9980 98 98 79 79 76. 76. हाँ जी So सर. we have shared the number in the chat box, the हाँ यार, chat कभी window. व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है. Possibly in the evening or in the on the weekends we can discuss anything. If you have any queries or anything, I would be happy to help this Yes. group, because it is learn and grow together. I would be really happy to share my views and help you grow your financial wealth. हाँ, yes, NPS is for after 60 only, madam. देखिए, एक चीज होती है कि हम सबको चाहिए पैसा, और बिल्कुल. अर्ली पैसा चाहिए, ठीक है, बट पैसा के लिए पैसा इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा. मनी बिल्कुल. ग्रोस व्हेन यू गिव मनी इनफ टाइम. अदरवाइज 5 साल में 10 साल में पैसा नहीं बढ़ता है. आप समझिए कि आज आरबीआई का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्यों 5% के आसपास घूम रहा है? Because they feel that in current situation of the market, current situation of the economy, it is absolutely extremely difficult to generate more returns than that. इसीलिए आरबीआई अपना रेट कम करती है. तो कोई बोलता है कि 10 साल में पैसा 3 गुना हो जाएगा, is not that easy. और इसीलिए मेरा ये मानना है कि you'll have to give enough time to generate that money. अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना भूल गया रजनीश भाई. कुछ लोग होंगे जो फैमिली प्लान कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक टिप, दैट फाइनेंशियल टिप फॉर फैमिली प्लानिंग. There is an insurance by SBI General Premier Policy. I think people must be knowing, some may be knowing, some may not. उसका ऐसा है कि 9 months का वेटिंग के बाद whatever expenses are done for the pregnancy, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, जो भी एक्सपेंसेस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, that they will reimburse up to 10 lakhs, which costs just like 20,000 for 2 years. आपको 2 साल का लेना होता है, वाइफ मतलब जो लेडी है उनका. So people of our age जो फैमिली प्लानिंग के जर्नी में होंगे, उनके लिए it's a just a tip for their financial management. क्योंकि 20,000 देके 50-60,000 1 लाख का खर्चा जो भी प्रेगनेंसी में हुआ, that is sure short return. So it's an opportunistic way of managing your finances. Right. So क्या नाम बताया आपने उसका, जो आपने अभी बताया? SBI आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी है. मतलब नाम इधर उधर हो सकता है, बट बेसिक इज SBI आरोग्य प्रीमियर पॉलिसी. ओके. that is a good thing. I think काफी लोगों पे undue pressure आ जाएगा अब तो. हाँ, क्या होता है कि वो डिलीवरी के टाइम पे अचानक से 1 लाख का खर्चा मैनेज नहीं होता है. उससे बेहतर है कि 1 साल प्लानिंग के 1 साल के 6 महीने के पहले ही आप डिसाइड कर लो कि यार अभी in a year or two we are planning to expand our family. तो you can invest those 20,000 or 12,000 a year or जो भी है वो, and then that makes a good financial sense मेरे हिसाब से. Right. So Parth, I think that's it for the day. Yes sir. I think so thank you Parth for giving us your time. And आप आए and you have shared a lot of insights, and the beauty was simplicity से जिसका आपने बताया, because it's very important to have that simplicity while explaining such a complex topic. Okay, I think just one last question. Yes. Okay, from Pankaj, one another objective based fixed instrument can be Sukanya Samriddhi Yojana. What do you suggest? It's a good plan. See, सुकन्या समृद्धि योजना है, वो फिक्स रिटर्न नहीं है, बट वो it's an extended version of PPF. हर साल उसका रेट बदलता रहेगा. आपकी मैच्योरिटी फिक्स 21 इयर्स के ऊपर है. तो सुकन्या समृद्धि भी ले सकते हो, और LIC का एक कन्यादान पॉलिसी है वो भी ले सकते हो. बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड. आई वुड गो विद दी, अगर मैं एक फादर होता एक डॉटर का, आई वुड गो विद दी LIC कन्यादान पॉलिसी, बिकॉज उसमें मेरे को एक लाइफ की सिक्योरिटी भी है कि अगर मुझे कुछ हो गया है ना, फिर भी दैट अमाउंट इज गारंटेड. इसमें ऐसा है कि हर साल मैं पैसा डालूंगा, और मेरे को कुछ हो गया तो वो पैसा कोई नहीं डालेगा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा. सो इट इज बेटर टू गो विद द प्लान इन द सिमिलर सेगमेंट फ्रॉम LIC. Okay.
Right. So, right, Parth, thank you so much. Yes, sir. And Yes, sir. we have already shared Mr. Parth's number. I'll just share it again. His number is there on the screen. It is 9980987976. 9980987976. आप लोग वीकेंड्स आप लोग इसको सेव कर सकते हैं. Mr. Parth will be available on WhatsApp for all of you, especially on weekends, because weekdays he's working. And if you have any queries regarding to your financial management and how to manage the finances, I'm sure he will be very. He's there to help all of us. So thank you again, once again, for joining us. And we are again, like I said, we are from PMT India Group. Parth and I, we both are members of that group. And this is our initiative. This is the second session that we are having, and very soon we are coming up with more such sessions from different topics from different fields, where we'll be talking about new topics so that our learning increases. So you can follow us on at PMT India Learning. We are on Facebook, Instagram, and LinkedIn. So thank you everyone for joining. Thank you, Parth. Thank you so much, Bhai. Thank you. It was a great pleasure for me to share my views, share my experiences, and make a cent of difference in someone's life, and that's what matters in the end in life. We all are busy during the weekdays. We do our all routine work. We do our jobs well. But in the end, sometimes sharing this kind of a different offbeat topics with friends, family, and group members is a great thing. And I must thank you for this kind of an initiative. Out of your busy schedule, you are managing this. So once again, thank you everyone uh, for being the nice audience, uh, sharing your views, sharing your questions, and thank you, Rajneesh Bhai, for having me Thank you. here. Thank you. Thank you, Parth. Thank you. Okay, audience, we'll take your leave now. Thank you. Bye bye.